every subject scoring as per as per his strategy. So about him, he's currently IT department rank 1 holder, and I guess starting seat there. And also he's awarded. He's the winner of PGM scholarship, as you can see यहाँ पे. And recently Metax होता है. Metax is a famous research. What should I call it? Research firm. It's a organization which gives like internships in Canada. Yeah. तो आप में से किसी को रिसर्च में जाना है वो वाले क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो शुभांग से लास्ट में. एंड ही हैज आल्सो एंटर्ड एट IIT Delhi, and you must have seen his posters and attended his events. He is quite a famous debater and quizzer in DTU. तो उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं. So let us move straight on to an introduction from Shubhang about himself. Thanks for that, Aman. एक बार ये देख लो, like if people are left तो बुला लो, मैं फिर एक ही बार start करूँगा, like because I don't know कि तुम बीच में उन्हें entry दे पाओगे या नहीं. हाँ दे देंगे, no problem. They are just coming. चलो let's start. No problem. ठीक है. तो तू यार वो ये screen minimize कर सकता है जो meet वाला. I'm seeing myself, थोड़ा weird लग रहा है. No problem. Okay. So hi guys, I'm Shubhang. Introduction to Aman ne de diya. Ek baar just tell me this: are any of you people from say like other countries, like DASA students or something? So then I would like speak in English. Agar sab India se ho, then I like mix Hindi and English. So language preference bata do. If someone doesn't understand Hindi, so I'll keep it in English. So type kar do if you guys are not comfortable. English mix कर देते हैं if everyone is comfortable. Cool. Okay, I'm assuming there's no one from like Nepal or someone outside India, so I'll like mix it. Okay. So guys, mainly so like the brief I was told was that this is like supposed to be a session to guide you guys through how to score better GPA, like CGPA कैसे maximize करी जा सके in the first year. And naturally, when you enter college school say, so it's difficult because you have like lots of questions, you have lots of resources, and it's difficult to make a strategy. ये सब face करते हैं. जब मैं आया था या जब अमन आया था, like initially किसी को भी नहीं पता होता, and it's like difficult to develop a proper way to study and to get the right resources. तो उसी में आप लोगों की like help करने के लिए like Aman and his startup are holding this particular seminar. So I saw some of the questions that were on the chat. I'll try to take all of them end के आसपास या मतलब middle में जहाँ relevant लगेंगे. And अभी like I'll just start like subject by subject. So intro तो अमन ने दे ही दिया मेरा, उससे ज़्यादा like मैं क्या ही बोलूँ. But anyway, just in like brief, I'm in the IT department 3rd year, and me, Aman and I were in the same batch in our first year, first and second semester. उसके बाद batch change हो गया था because like उसका नाम A से start होता है, तो he's in the first batch, मेरा S से start होता है, I'm in the second batch. तो like alphabetically section बनते हैं. So यही है, but like yes, we still continue to be good friends, and वही like he modest हो रहा है, but इसकी खुद की भी first semester में 9.8 CGPA आई थी. तो हो like इससे भी like अलग से tips ले सकते हो जब like after the seminar जो भी इसके touch में. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन तो हो गया. लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों को जो जानना है ना, व्हाई इज 10 CGPA important and what is the exact benefit you faced about the CGPA, क्योंकि ये चीज मतलब मैं honestly बोलूँ तो like a high CGPA is important. If you keep it above like 9.2 तो बहुत beneficial है उनके लिए, खासकर जिनको on campus internship चाहिए, placement चाहिए. Particularly मतलब to be honest, like अगर आपकी 9 या 9.2 है या 10 है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके like placement वगैरह पे. The only thing is कि मतलब यही आपको एक like rank मिल जाती है, उससे थोड़े मतलब ये scholarship वगैरह मिल सकते हैं. That's about it. But वो like again वो मतलब person to person है. अगर किसी को वो matter करता है तो then obviously you need a 10. Otherwise मतलब 9 पे भी आपका काम चल जाएगा. Like above 9 you are like you'll be in the top 100 students of your batch, like 2000 में से I think 120 130 लोग होते हैं जिनकी 9+ आती है every semester. तो अगर आपकी 9+ है तो you would be in the top 100, which out of 2000 is I think like a very good ratio. It's top 5%. तो वो मतलब वो भी बढ़िया है. तो मतलब हाँ 10 का कोई मतलब कोई एडवांटेज यही है बस you get like some scholarships from the college for being the department topper, and मतलब वही rank आपकी एक रहती है. But obviously like मैंने वैसे कोई target नहीं किया था कि मेरे को 10 लानी है. I just like studied religiously, and then वो like अपने आप ही आ गई. So मतलब like that would be my first advice कि I won't like say कि
ऐसे टारगेट करके चलो कि 10 लानी है, इतना प्रेशर की कोई लाइक नीड नहीं है. जस्ट लाइक स्टडी रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली एंड वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इफ यू आर लाइक कंसिस्टेंट इन योर स्टडी. बाकी हाँ, तो मतलब 9+ इज गुड फॉर ऑल योर अदर बेनिफिट्स, लाइक जो जिस चीज के लिए मोस्ट लोग आते हैं कॉलेज, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, आगे फर्दर स्टडीज वगैरह, वो सारा काम 9+ पे भी सेम होगा जो 10 पे होगा, 9+ पे भी वही होगा. कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ेगा. बस यही है कि मतलब यही डिफरेंस है. वो जैसे 120 लोगों की 9+ आती है, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक 5 या 6 लोगों की 10 आती है. तो मतलब टॉप 5 में हो जाओगे थोड़ा, मे बी लाइक आपको थोड़ी मतलब कह सकते हो एक इमेज बन जाएगी इन अ सेंस. दैट्स अबाउट इट. दैट्स द ओनली बेनिफिट अगर. दूसरी चीज, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ. देखो, ये वेबिनार यूनिवर्सल है एंड दिस वुड बी जनरल वाइड. ठीक है, आपके सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगती है, शुभांग सेट सेकेंड ईयर के एंड में. एंड मोस्ट ऑफ चीज नहीं, जो जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते फर्स्ट ईयर और द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स विच आर स्कोरिंग आर सेम फॉर बोथ. सीओ वालों के लिए भी, पीआई वालों के लिए भी, ई वालों के लिए भी. So this is your time to actually, make a move if you want to crack software engineering internships and you are competing with CO wale log. So this is the time you should focus on, and this is why we are hosting that webinar, so you can compete with those people during your second year. And the step you have to take, जो आपको steps लेने पड़ेंगे वो अभी से लेने पड़ेंगे. Now, Shubham, थोड़ा grading system के ऊपर if you can explain. मैं एक बार ना ऐसे करता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन लाइक जो द थिंग्स आई हैव टू से, उसके बाद इफ आई मिस समथिंग तो अमन यू आस्क मी. ठीक है, ओके. सो हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम बता देता हूँ. सो द थिंग इज, डीटीयू में ना रिलेटिव ग्रेडिंग होती है. इट्स एक्चुअली नॉट प्योरली रिलेटिव, इट्स व्हाटएवर इज लोअर आउट ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार मेरे को चैट में ना ये बता दो कि किसी को कुछ भी आइडिया है ग्रेडिंग का, या बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैं एकदम लाइक स्क्रैचेस बता दूंगा. एक बार लिख दो. ग्रेडिंग सिस्टम का किसको नो आइडिया. ठीक है, नो आइडिया. आई एम अज्यूमिंग नो आइडिया. तो मैं बताता हूँ. लाइक ऐसा होता है एसेंशियली, अगर आपने ऑर्डिनेंस पढ़ी होगी इनिशियली, ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट एक मोटी सी बुक का ई बुक मिला होगा, ई बुक ही मिला होगा अब तो, ऑर्डिनेंस का. उसमें ना फर्स्ट के स्टार्टिंग के पेजेस पे लिखा होता है कि मार्किंग कैसी होती है. तो मार्किंग में बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है कि 90 to 100 ओ होता है, 80 to 90, 81 to 90 ए प्लस होता है, फिर वही 72 to 81 ए, फिर बी प्लस, बी, सी, ऐसे 10 मार्क्स के गैप में, 9 मार्क्स के गैप में वो ग्रेड एक कम होता जाता है. एंड योर पासिंग मार्क्स आर 35 आउट ऑफ 100 टोटल. तो उस बेसिस से आपको आपका ग्रेड लगता है. एंड ये ऑर्डिनेंस ना मिल जाएगी, डीटीयू की साइट पे पड़ी है, उस पर आप जाओगे तो मिल जाएगी इस साल की, मतलब अगर उन्होंने ऑफिशियली नहीं दिया तो. एनीवे, तो ऐसे आपका होता है. बट द थिंग इज, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं which are like very tough naturally, तो उसमें no one scores above a 90. मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे बैच में हाईएस्ट ही 75 है, तो देन द गाय हु स्कोर 75 उसको ओ मिल जाता है, देन वो रिलेटिव हो जाता है, तो वो लोअर देखा जाता है. जैसे मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट इतना इजी हो कि मान लो पूरे बैच के 97, 97, 98 आ रहे हैं, तो उसमें 97 नहीं कंसिडर होगा, 90 कंसिडर होगा एज द ओ का कट ऑफ, बिकॉज 90 इज लोअर देन 97. बट अगर हाईएस्ट ही 85, 84 है, देन 84, 85 becomes the cut off for O grade and not 90. मतलब जो लोअर होता है दोनों में से वो, दैट इज हाउ लाइक द ग्रेडिंग वर्क्स. बाकी एग्जैक्ट जो उसका है वो बहुत डिटेल में ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है 5-6 पेज में, वो डीटीयू की वेबसाइट पे मिल जाएगी अगर ढंग से पढ़ना हो. तो बेसिकली एब्सोल्यूट और रिलेटिव में से लोअर होता है. बाकी मैंने ग्रेड कैसे मिलता है बता दिया. आपका 100 मार्क्स की टोटल असेसमेंट है, उसमें से 90 to 100 इज O, 81 to 90 इज A प्लस, 72 to 81 इज A. वही उसके नीचे फिर बी प्लस, बी, सी, डी, ऐसे 10 मार्क्स में खुद कम करते रहो टिल 35 के नीचे फेल होता है. ठीक है, तो ये है सारा लाइक मार्क्स ग्रेड कैसे लगता है. Does that cover it, Aman? Yeah. Also, ordinance for 2019 को उठा सकते हो, it's quite similar. हाँ, सब सेम है. 19, 20, 18 कुछ चेंज नहीं है, बस वो साल बदल देते हैं कवर पे. It's everything is same. कोई भी उठा लो. Right. अब आते हैं हम resources पे. Since it's a open webinar sort of thing, first of all, to make this interactive and just to know you guys better, maths में what resources are you finding appropriate, and then Shubham will tell you the best resource available for maths. So कोई बता सकता है, just a single representative from you. भैया HC तनेजा. And उसमें कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? यस, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग को नहीं मिलते हैं, या कुछ क्वेश्चंस ही गलत होती हैं. ओके. एंड और किसी को कोई स्पेसिफिक दिक्कत? मुझे वो भी बोल रहे थे लोग सॉल्यूशन से मिलते हैं. हाँ, ठीक है. उसमें कुछ आंसर गलत भी है.
हाँ ठीक है, नहीं वो तो दैट इज अ सेकेंडरी प्रॉब्लम। और कुछ एचसी तनेजा के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे जो एक्सरसाइज में है? चलो ठीक है, these are your main questions. ओके ठीक है, मैं शुभम, समझ गया। हाँ, या सो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स फर्स्ट। तो मैथ्स में बेसिकली आपके दोनों सेम होगी। इसमें एचसी तनीजा इज लाइक द बाइबल, मैंने भी सिर्फ वही पढ़ी थी। उसमें उसकी आई थिंक जो नया एडिशन है वो 2 पार्ट में स्प्लिट है। जो पुराना वाला है वो एक बुक होती थी, या वाइस वर्सा, आई एम नॉट श्योर। जो एक बुक वाला है ना, बाय दैट बुक, बिकॉज उसमें मिस्टेक्स कम है थोड़ी। एक जो भी एक एडिशन है जिसमें बुक 2 पार्ट में स्प्लिट है, लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो वाला मत लेना, उसमें मिस्टेक्स हैं थोड़ी। जो सिंगल बुक वाला है वो बेटर है, उसमें गलतियां कम है थोड़ी। दैट्स लाइक व्हाट आई रियलाइज आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो मतलब ये एचसी तनेजा ही बेस्ट है। मैंने मैंने भी सिर्फ एचसी तनेजा ही पढ़ी थी। बिसाइड्स दैट आपके मतलब अब आपका ना वो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है दैट ऑनलाइन हो तो यू कांट इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स वगैरह। बाकी ये जो इश्यूज है ना कि अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या अटक रहे हो, ये पर्सनली मैंने तो लाइक दोस्तों वगैरह से ही लाइक मिलके ही हमने किया था। तो मैंने और कोई रिसोर्स यूज नहीं करा था। बाकी क्लास में हमारा ना सेकंड सेमेस्टर में एक्चुअली सर काफी अच्छे मिल गए थे हमें। फर्स्ट सेमेस्टर में इतने अच्छे नहीं थे, अमन वुड नो दिस। सेकंड में हमारे सर काफी अच्छे थे, तो वो लाइक जेन्युइनली अच्छा पढ़ाते थे और उन्हें नॉलेज भी थी। तो फिर क्लास भी लाइक काफी हमारे लिए एक एडवांटेज हो गई थी, क्योंकि उसमें लाइक सर अच्छे से समझा देते थे। जो उन्हें पता होता था जहाँ बच्चे अटकेंगे वो मतलब कराते। तो ये अगेन प्रोफेसर डिपेंडेंट है। कुछ बैचेस मिल गए होंगे टीचर्स, वो पता चल जाता है टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से। तो मतलब जिनके अच्छे हैं वो क्लास में ध्यान दे लो, जिनके नहीं है वो जो तुम्हारे दोस्त हैं उन क्लासेस में उनके नोट्स ले लो। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। बाकी मतलब आपका इससे काम हो जाएगा। इसमें एडवांटेज ये होती है मैथ्स एंड फिजिक्स में स्पेसिफिकली, दैट बिकॉज ये सबका कॉमन होता है पूरे बैच का, तो यू हैव लाइक 2000 पीपल गिविंग द सेम एग्जाम। तो आपका रिलेटिव बहुत इजी हो जाता है। I mean, इसमें like मतलब although ये high scoring subject है, maths is the high scoring subject, people like get 95 plus, but इस पे 86 87 तक भी वो आ जाता है, because आपका like because बच्चे इतने ज्यादा हैं, because 2000 people are giving the same exam, तो वो relative बहुत ज्यादा मिस प्रोवाइड हो जाता है ना। So that's why इसमें like all answers is like highly possible। अगर आप मतलब एचसी तनीजा भी कर लो ढंग से सारे एग्जांपल्स and relevant questions from exercises वगैरह, it's a scoring subject, so इसको and plus maths है, most people are naturally interested in maths। सर कौन से थे? आदित्य कौशिक सर थे यार मेरे एक सेकंड सेमेस्टर में। तो अगर किसी के हैं तो वो काफी अच्छे सर हैं। क्लासेस थोड़ी कम लेते हैं बट पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। also I remember मतलब कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी, they were just asking me how much should they spend their time on मतलब what's the strategy to study at class during class for online अगेन वो semester? प्रोफेसर, अच्छा ऑनलाइन सेमेस्टर या मैंने तो पर्सनली कोई क्लास अटेंड नहीं करी लास्ट सेमेस्टर में, बट लाइक वही मेरा 5th सेमेस्टर था, तो मैं फर्स्ट में तो ये एडवाइस नहीं करूंगा। बट बिकॉज लाइक हमारे पास ऑलरेडी 4 सेमेस्टर की जीपीए थी, तो इतना प्रेशर इतना नहीं है। बट लाइक हाँ, तुम वही मैं जो कह रहा हूँ कि प्रोफेसर डिपेंडेंट है। तुम्हारे प्रोफेसर अच्छे हैं तो कर लो, नहीं है तो ऑनलाइन में तो बहुत ही ईजी है, कुछ मतलब लॉग इन करके छोड़ दो, अपना काम करो। तो इट्स लाइक दैट, प्रोफेसर डिपेंडेंट है। दिनेश उधार यार मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा नहीं हूँ कभी उनसे, मतलब मैं किसी को जानता भी नहीं जो पढ़ा है, तो आई कांट लाइक कमेंट ऑन हाउ दिनेश उधार सर। ओके हाँ, यूट्यूब वीडियो यार मैंने पर्सनली यूज नहीं करी। लोग एक कोई चैनल है भगवान, लोग उससे पढ़ते थे। अमन तूने पढ़ा है क्या उससे? नहीं just a single simplified answer. Shall we pursue have you pursued YouTube for maths? No, I haven't pursued YouTube, मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा था। ठीक है, I am neither, yeah, like I haven't also pursued। And what is the importance of maths? क्योंकि I'm finding it's very important in programming and you shouldn't do it from videos। देखो pursue कर सकते हो YouTube पर कर अगर लो। आई मीन मैंने वही मैं कह रहा हूँ, मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा तो मैं नहीं कह सकता कैसे, बट हाँ दिस चैनल भगवान सिंह ये जो है, ये लोग इससे बहुत पढ़ते थे, उनका भी वो आया है। तो आप ऑन मेरे को पता नहीं था अपने फिर में, मुझे ऑनेस्टली सेकंड ईयर में जाके पता चला है। तो मैंने नहीं पढ़ा था इससे, मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा था। तो ये यू गाइस कैन टेक अ कॉल। तो मैं इस पे कुछ लाइक मतलब मैंने कोई यूट्यूब या कुछ रिसोर्स यूज नहीं करा था। इट वाज द बुक एंड द नोट्स। ये ईपी एक मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराग ने पूछा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो branches can be tough or relatively tough on basis of your interest, but the main thing is अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग pursue कर रहे हो, the first year is same for everyone। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में डालो। फर्स्ट ईयर इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर तो कॉमन है ही जैसे है, बट कोई ब्रांच टफ नहीं है, कोई इजी नहीं है। हर ब्रांच में 10 सीजीपीए आती है, ठीक है, लाइक सेकंड थर्ड हर ईयर हर सेमेस्टर हर ब्रांच में किसी ना किसी की आती है। तो अगर एक की आ सकती है तो औरों की भी आ सकती है, वो आपसे डिपेंड करता है।
मतलब ये जो होता है कि मतलब यू नो इसमें है मतलब इस ब्रांच में मतलब एक कन्वेंशन होती है दिस ब्रांच इज लो स्कोरिंग दिस इज हाई स्कोरिंग ऐसा लाइक मतलब है नहीं हाँ, ठीक मतलब है। वो आप पे डिपेंड करता है एक एक किसी ने पूछा था डज ओ ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट गारंटी 10 हाँ जब 10 सीजीपीए इज इफ यू गेट ओ इन ऑल सब्जेक्ट्स और किसी के में नहीं आएगी तो मैथ्स की स्पेसिफिक वर्ड शुड बी द स्ट्रैटेजी, ठीक है, अच्छी तरह से देख लिया अपन लोगों को। अब strategy yeah, क्वेश्चन read the theory उसके बाद like read the solved examples try some of them and if you are stuck ask your friends वगैरह कि for the doubts and do examples and इससे ज्यादा वैसे ही तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा जाके ठीक है, पेपर दो should we pursue the exercises? हाँ हाँ मतलब वही टाइम है कर लो नहीं तो एग्जांपल्स तो सारे कर ही लो एक्सरसाइजेस आर एसेंशियली जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एग्जांपल्स तो इफ यू हैव टाइम डू देम प्रैक्टिस से मैथ्स इंप्रूव भी होती है टाइम नहीं है तो छोड़ देना मतलब टाइम डिपेंडेंट है ठीक है, समझ ऑन द मैथ साइड सबको समझ में आ गया? कोई रिस्पॉन्स दे दो। इतना ही है मैथ्स में, देखो ज्यादा भी नहीं है। यस, ओके। नाउ कमिंग अप टू, अच्छा मैथ्स का यूज बहुत है प्रोग्रामिंग में, सो डोंट स्किप दैट सब्जेक्ट एंड कोशिश करना स्कोर कर लो, इट विल इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, एवरीवन विद कोई भी सेमेस्टर से। फिजिक्स पे आते हैं, दिस इज अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, दिस इज इसमें यार अभी देयर इज अ कॉमन बुक कॉल्ड एकेला फिजिक्स का एक बार फिजिक्स का बताओ, कोई रिस्पांस तो अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, देन शुभांग विल टेक ऑन द Dude, एक बार बिफोर दैट यू शुड बी टेक ऑल द क्वेश्चंस बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं वो मिस हो ठीक जाएंगे है, हाँ, जस्ट सी देम वंस। ओके लेट मी जस्ट सी ईपी ब्रांच अपनी है यार मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी प्लेसमेंट नहीं हुई है हमारी उसके बाद पास्ट ईयर पेपर हाँ पास्ट ईयर पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं मैं एंड में बताऊंगा इसका कोडिंग के साथ साइड बाय साइड सीजीपीए मतलब सेम ही थिंग है यार तुम जब लाइक कोडिंग जो भी प्रेप कर रहे होगे उसमें तुम्हारे सब्जेक्ट्स कॉमन है लाइक इसी चीज की प्रेप करोगे तुम इंटर्न के लिए भी या डबल ई का वील गेट टू दैट इन 5 मिनट्स पेपर से कितने दिन पहले यार पता नहीं मैंने रेगुलरली पढ़ा था लाइक जस्ट मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे नहीं पढ़ता था इतना बिकॉज एक कॉलेज में बिजी होता था पर हर सैटरडे संडे पढ़ लो 2-3 घंटे तो मतलब मैंने ऐसे कोई एंड टाइप नहीं किया था वाज लाइक रेगुलर ओनली तो कितने दिन पहले कांट कमेंट लाइक अमन यू हैव एनीथिंग ऑन दिस कितने दिन पहले पढ़ना कंसीडरिंग दिस ऑनलाइन सेमेस्टर, तुम्हारे ये सारे सप्लाई ऑनलाइन में तो यू हैव टू बी रेगुलर बिकॉज हर मंथ टेस्ट है डोंट टेक रिस्क, हाँ, डोंट टेक रिस्क। और बच्चों मतलब देखो हमारा मीनिंग में ये है कि आप सबकी अच्छी सीजीपीए आई, सो आई वुड द बेस्ट एडवाइस इज डोंट टेक एनी रिस्क द लास्ट मोमेंट। उसके बाद आईओएसडी कैसी है आई डोंट नो आई एम नॉट इन आईओएसडी फिर कोई बेस्ट चैनल फॉर कोडिंग पता नहीं मैं इतना कोड नहीं करता अमन वुड नो बेटर अबाउट दिस टेक सोसाइटीज है अरे मेरे को नहीं पता आईओएसडी वगैरह का आई एम नॉट लाइक इनटू ऑल दोस सोसाइटीज फिर किसी की सोसाइटी मीट है ओके थिंक यही है ये वाले क्वेश्चंस तो समझ में आ गए। मैथ से स्पेसिफिकली कोई और डाउट है किसी को? प्रोग्रामिंग पे भी आएंगे, हमने लिखा हुआ है अलग से, उसमें क्वेश्चंस ले लेंगे अगर कोई स्पेसिफिक हो। मैथ्स के किसी को और कोई डाउट है? भैया मैथ में ये डाउट है कि सारे सब्जेक्ट के बराबर टाइम देना है या मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। वैसे मैथ स्ट्रांग है मेरी पर फिर भी हाँ मतलब नेचुरली थोड़ा ज्यादा लगेगा उसमें बिकॉज वही प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट होता है ना खुद से करना पड़ता है तो लग जाता है नॉर्मल मतलब उसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा थोड़ा ज्यादा टाइम तो यार आई कांट हियर यू हूएवर इज स्पीकिंग ऑनलाइन में हाँ मिड सेम कैंसिल हो गया था, बताओ थोड़ा जोर से बोलो। हां तो फिर भैया 25 मार्क्स का उन्होंने प्रोजेक्ट रख दिया है एक और फिर 40 मार्क्स का विदाउट प्रैक्टिकल। यार मेरे को आवाज नहीं आ रही है अमन जस्ट लाइक एक बार अगर एक बार ये सुन के मेरे को बता दियो हाँ, आई कैन हियर यू, ठीक है। आई एम फेसिंग योर क्वेश्चन, एक मिनट। शुभम, ये आस्किंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, कि हम ये भी क्वेश्चन क्लियर कर रहे थे क्योंकि वेबिनार कर ही रहे, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन की प्रोजेक्ट्स क्या है मैथ्स के? एनीवन मैथ्स में आपको क्या प्रोजेक्ट है? मैथ्स यार वही हमारा तो फर्स्ट ईयर ऐसा था ही नहीं तो हमने तो कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं तो मतलब मेरे को आईडिया नहीं है मैथ्स के क्या प्रोजेक्ट होते हैं मतलब क्या है मतलब बोलिए इसको फर्स्ट ईयर वाले लोग आते हैं, शुभम विल ट्राई टू गिव एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इसका प्रोजेक्ट्स का। यार यही है जस्ट सी जो तुम्हारे चैप्टर्स है ना जैसे क्या फर्स्ट सेमेस्टर में वो होते हैं ना आई थिंक इट्स कैलकुलस होती है फर्स्ट सेमेस्टर में या नहीं सीक्वेंसेस होती है सीक्वेंसेस है ना स्टार्ट तो उससे रेलेवेंट हमारा वो जस्ट गूगल इट सीरीज वगैरह से रेलेवेंट क्या चीजें हैं एंड ट्राई टू मतलब डेवलप समथिंग ऑन दैट जैसे जो भी सीरीज के फॉर्म तुम पढ़ोगे या जो भी आगे के यूनिट्स में पढ़ोगे
उसे just try to develop उन चीजों को कैसे real world में लगा सकते हो, so, you know, some real world application of series or something like that. तरह का। Just या taking मैथ में प्रीवियस ईयर भी करने जरूरी है? हाँ, previous year हर सब्जेक्ट में करने हैं, वो मैं एंड में एक बार बता दूंगा सबका साथ। ठीक है, that is a nice point. Previous year मैथ्स का एक बार बता सकते हो आपके टीचर्स ने प्रोजेक्ट्स का बताया है कोई भी? रिगार्डिंग द थिंग, एक जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वाली बात है, तो उसमें एक ये चीज़ प्रेफर करना कि अपने टीचर्स से एक बार पूछ लो कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आपसे। वो ज़्यादा सही रहेगा रादर देन हम बताएं, क्योंकि हमने भी ये चीज़ फेस नहीं करी हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के। मतलब हमारे जो सब्जेक्ट है, जब प्रोजेक्ट्स हमारे आए तो हम एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हो गए, लेकिन मैथ्स में क्या प्रोजेक्ट बनेगा, फिजिक्स में क्या बनेगा, वो टीचर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बार उनकी एक्सपेक्टेशन पूछ लो। मैं एक बार ना फिर भी एंड में तुम्हें जनरली बता दूंगा किस तरह के, मतलब हमने भी एक ही सेम एक्सपीरियंस करा है, मैं उसमें बता दूंगा द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आई फेस्ड और उनको कैसे टैकल करना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आई कांट से बिकॉज़ हमने बनाया नहीं, बट मैं जनरली बता दूंगा प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो। ठीक है, यू विल एक्सप्लेन। एंड किसी को इसके ऊपर और डाउट होगा ना, जस्ट मुझे एक बार पूरा प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन कर देना अलग से, मैं एक ग्रुप में अलग से एक बार बता दूंगा, आप लोगों को एड्रेस कर दूंगा इन सब वेबिनार। ओके, एक बार सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं फील अदरवाइज। भैया मैथ्स में 40 मार्क्स टीचर्स देंगे तो वो कैसे मतलब टैकल कर सकें? 40 मार्क्स टीचर देंगे मतलब? हाँ भैया, मतलब इस टाइम मतलब विदाउट प्रैक्टिकल वाले में 40 मार्क्स टीचर्स देंगे। मैथ्स मतलब में ये प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, मतलब वो हाँ, एंड ये सेम self- मतलब 40 होगा ना, नॉर्मली तो टेस्ट से इवैल्यूएट होगा। हाँ नहीं, मतलब एक सेम के बाद लगभग 40 मार्क्स टीचर्स देंगे। ये कब होगा? मुझे नहीं समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता था। एक बार कोई मैथ की ग्रेडिंग सिस्टम बता दो भैया। 25 मार्क्स प्रोजेक्ट्स के हैं, हाँ। 10 मार्क्स क्विज वगैरह के हैं, हाँ, और फिर मतलब ये जो क्लास टेस्ट होंगे उसके होंगे, बाकी बचे 40 मार्क्स वो टीचर्स अरे देंगे। वो नहीं इतना नहीं होता टीचर्स के हाथ में, कम होगा, 20 के आसपास होगा, वो सबको ही दे देते हैं, वो उसका कुछ मतलब करना नहीं होता, कुछ असाइनमेंट देंगे तो वो कर लेना, बाकी वो वैसे सबको अच्छा ही दे देते हैं, उसमें इंटरनल में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती। प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग जस्ट आगे एक बार जब सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं फिर उसके बाद जनरल ले लेंगे, डाउट से मैंने मिस हो जाएगा बहुत हाँ, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा रुक जाओ, प्रोग्रामिंग पे स्पेसिफिकली आएंगे। मैं ये पूछ रहा था, इज देयर एनी फायदा टीचर से इंटरेक्ट करने का? काफी लोगों का क्वेश्चन है। हाँ, मतलब वही अगेन डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर अच्छे भी हैं डीटीयू में, वो लाइक यू नो हेल्पफुल, जो आपको पर्सनली अटेंशन दे देते हैं, कुछ नहीं भी होते, वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं अगर उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करो, तो ये सब बहुत प्रोफेसर डिपेंडेंट है, यू नो ये आपको एक पता चल जाएगा क्लास से, जो प्रोफेसर क्लास में इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं या बच्चों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यू नो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो जनरली मतलब हेल्पफुल होते हैं। जो मतलब यू नो ऐसे होते हैं कि क्लास ही नहीं ले रहे, आई अटेंडेंस वगैरह छोड़ दिया, कोई उनको खुद भी मतलब नहीं, आपको भी मतलब नहीं, वो क्या हेल्प करेंगे आपकी, उनसे मत करो बात, तो अपना सब्जेक्ट निपटाओ, आगे बढ़ो। And finally, if they have any doubts, considering they will have doubts during this semester, where should they हाँ, clear? that's what I said ना, मतलब मैंने पर्सनली तो लाइक पीयर ग्रुप में करा था, वो आई वुड सजेस्ट तुम भी वही कर लो, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ लाइक 4-5 फ्रेंड्स जो लाइक सेम टाइप के पढ़ने में हो, एंड आपस में डिस्कस कर लो, मिलजुल के हो जाता है काम। ठीक है, प्रोजेक्ट्स सर पूछो शुभम। सर मैं ये पूछा था सर कि मतलब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं सर, मतलब हाई स्कोरिंग करने वाले? यार ये मेरे को ऑनेस्टली इतना याद भी नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट मतलब चैप्टर बाय चैप्टर बता पाऊँ, बट फिर भी चलो एंड में ट्राई कर लूंगा जितना याद आएगा। एक बार मतलब मेरे को भी ऑर्डिनेंस देखनी पड़ेगी, एक बार पहले सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं फिर, क्योंकि ना आधा घंटा हो गया फिर सारे वो छुट्टी। हाँ ठीक है, फिजिक्स पे आते हैं। हाँ, फिजिक्स में यार एक जगह यूज करी थी, एंड उसके अलावा एक बुक आती है बाइजर, उससे कुछ चैप्टर काम के होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिविटी का एक चैप्टर होता है, वो बाइजर से कर लेना। बाकी मतलब मैंने एक जगह यूज करी थी, बाकी मतलब एक जगह ना वो है लाइक फ्लिप साइड है, कुछ लोग कहते हैं कर लो, कुछ लोग कहते हैं ना कर लो, मैंने ऑलरेडी कर ली थी तो फिर आई डिडंट चेंज माय रिसोर्स, बट अगर तुमने नहीं करी है तो तुम सारे चैप्टर बाइजर से भी कर सकते हो, बोथ आर फाइन। एक जगह जो थोड़ी छोटी, इससे थोड़ी छोटी बुक तो जल्दी हो जाती है। एंड एक एग्जाम में सेम स्ट्रैटेजी नो सेम ना? हाँ, एक एग्जाम में सेम स्ट्रैटेजी नो। अभी तो अमन एक म्यूट कर दे बंदे का ना। हाँ म्यूट कर दो, अब माइक ऑफ कर दो जिसका ऑन है। हाँ शुभम, तो एक एग्जाम में just like read the theory, read वही same यार, read theory, do examples, do back questions, इसमें सारे back questions कर लेना, it's not like maths because वो
आधे वो वैसे ही theoretical होंगे तो वो मतलब लिखने नहीं है, मतलब just read them, और जो न्यूमेरिकल्स 7-8 ही होते हैं पर चैप्टर तो जल्दी हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ ओके आई जस्ट बाइजर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यू कैन स्टिल डू इट बट डू एक डोंट लीव दैट, जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देखो एक इसमें वैसे नोट ऐड करना चाहूंगा, कुछ प्रोफेसर्स हैं, आई हैव हर्ड फ्रॉम लाइक सम फ्रेंड्स जो थोड़े एंटी एकेजा होते हैं फॉर सम रीजन, पूछे कि एकेजा से मत पढ़ो, अगर ऐसा तुम्हारा प्रोफेसर है तो फिर मत पढ़ना, बिकॉज वो फिर तुम्हें नंबर नहीं देगा एकेजा का लिखने में, तो वो बुरी किस्मत कह लो या जो भी कह लो, अगर ऐसा प्रोफेसर मिल जाए तो जो वो सजेस्ट करे उस किताब से पढ़ लेना, एकेजा से मत पढ़ना, ठीक है, फिर नंबर नहीं मिलेंगे, फिर हमें गालियां दोगे। another thing इस सेमेस्टर में this was a very important question, चीटिंग का कुछ चीटिंग का क्या फंडा कुछ इस सेमेस्टर मतलब होती है नहीं, मतलब हाँ वो तो ऑनलाइन में अब जैसे, अरे वो तो मैं क्या बताऊं, उसमें जैसे करोगे सब कर लेना। हाँ कर सकते हो, देखो अपने में स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट ये एंश्योर कर लेना ये सारे जो रिसोर्सेज बता रहे हैं शुभांग, वो एक बच्चा तो कर ले, हमने भी किया है, बट हमने भी ऐसे ही स्ट्रैटेजिकली किया है, डोंट लीव एनीवन आउट इन योर ग्रुप। सर एचजी पेन कैसी है? क्या एसजीपीए की बात बोल रहा हूं। नहीं, एसजीपीए क्या, मैं समझा नहीं। एचजे पेन कह रहा है वो वेब अच्छा की नहीं, किताब है। नहीं नो आइडिया, मैंने सुना भी नहीं है कभी ना, मतलब मेरे को ना सुना ना, मैंने सुना था ना नीड पड़ी कभी, तो तुम देखो। भैया भैया पूछो। आप ये वाली फाइल सेंड कर दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये अमन से पूछ रहा है। हाँ मैं करूँगा। हाँ केमिस्ट्री पे आते हैं, फिजिक्स पे और कोई डाउट? शुभम सर, हाँ पूछो। शुभम सर मुझे ये पूछना था सर कि एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है या थ्योरिकल भी है, जैसे फिजिक्स का दोनों होते हैं मतलब अब वो डिपेंडेंट है, अगर तुम्हें हाई सीजीपीए चाहिए तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, अगर तुम्हें एवरेज मार्क्स चाहिए तो थ्योरी से भी काम चल जाएगा, बिकॉज मतलब दोनों ही होते हैं 60-40, मतलब 60 थ्योरी 40 न्यूमेरिकल। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल मतलब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ इसलिए, बाकियों की भैया बिल्कुल बोर्ड वाला का होता है क्या, कि मतलब जो बुक में लिखा है वैसे ही, मतलब नहीं मतलब पर बोर्ड वाला इन द सेंस ऐसे है कि मतलब लिखने के नंबर है, जितने पेज भरोगे उतने नंबर, चाहे मतलब थोड़ा गलत भी लिख दोगे, अगर पेज ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। अच्छा तो पेज भरने हैं यार कॉलेज में, कोई पूरा आंसर नहीं पढ़ने वाला, वो लेंथ देखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे, पेज भरने हैं। टीचर्स तो फॉरेन होता है, जो लेवल होता है सर, जो एग्जाम का लेवल होता है मॉडरेट टू हाई होता है, मतलब कैसा होता है सर? यार वो तो अब ये तो वही बात हो गई ना कि जेई में लोगों के 360 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, तो वो प्रिपरेशन पे डिपेंडेंट है, पढ़ा होगा तो सब इजी है, नहीं पढ़ा होगा तो सब टफ। इम्पोर्टेंट थिंग इट्स रिलेटिव, तो अगर एग्जाम हाई आ रहा है तो किसी और बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा होगा, तो आप ये देख के चलो टॉपर आपकी क्लास का कैसा है, उसको भी थोड़ा नोट में रखो, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेक हिम योर फ्रेंड। हां, इस हिसाब से कि ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन है तो तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा, वरना मिड सेम के आसपास आइडिया लग जाता है कि क्लास में पढ़ने वाले लोग कौन है, तो उससे हो जाता है, मतलब थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि किसके साथ बैठ के पढ़ सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट। भैया रिलेटिव जो आप कह रहे हो, जो सिर्फ 70-75 बच्चों का बैच है उसी में से देखेंगे या फिर पूरी नहीं 70-75 नहीं, पूरे सब्जेक्ट जिनने लिया होगा, जैसे जो आपका सब्जेक्ट कोड होता है ना, जैसे मैथ्स का AM 101 होता है आई थिंक, तो जिनके पास सब्जेक्ट होगा सब में होगा, तो मैथ्स में 2000 बच्चों में रिलेटिव होगा, इलेक्ट्रिकल और इनमें 1000 में होगा, बिकॉज ये सिर्फ बी बैच वाले पढ़ते हैं ना, ए वाले नहीं पढ़ते, तो उस हिसाब से। ओके फिजिक्स का तो क्लियर हो गया होगा, देखो सेम स्ट्रैटेजी है, जस्ट समिंग दिस अप, एक ही जगह से पढ़ना, क्वेश्चंस कर लेना, बुक से पढ़ लेना, थ्योरी क्लासेस का फाइनली ऑन फिजिक्स, should you recommend attending the classes in general? यार हमें ना टीचर एक्चुअली अच्छा नहीं मिला था दोनों सेम में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्लासेस में, वही जैसे मैं मैथ्स में कह रहा था कि तुम्हारे टीचर अच्छा है तो कर लेना, नहीं है तो मत करना, वो सब में कॉमन सब्जेक्ट्स में, इफ यू गेट अ गुड प्रॉफ तो मेक यूज ऑफ हिम ना, जैसे अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको पूरा निचोड़ो, अच्छे से पढ़ो, उससे नहीं पढ़ा रहा तो छोड़ दो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास तो एडवांटेज है, घर पे लॉग इन करके छोड़ देना, हमें तो फिर भी अटेंडेंस के लिए बैठना पड़ता था। राइट, कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री में यार एक नोट्स आते हैं, तो जैसे मार्किंग जो होती है तो जो टीचर करते हैं वो लिमिट करते हैं, मतलब या हार्ड करते हैं? हाँ मतलब डिसेंट होती है यार, इट्स नॉट टू स्ट्रिक्ट, मतलब ठीक होती है, लेकिन अगर तुम जैसे अगर मान लो तुम 20 मार्क्स या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मतलब 18-19 तो मिल ही जाएंगे, इतनी कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती कि तुम मान लो X एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे 10 कम ही आ गए, ठीक होती है मार्किंग, नॉर्मल होती है, कोई मतलब ऐसे कोई खुंदस नहीं निकालता नेसेसरली, अगर तुमने अनलेस कि तुमने पहले कोई पंगा ले लिया बेकार का। केमिस्ट्री पे आते हैं,
केमिस्ट्री में यार एक नोट्स आते हैं, मतलब ड्राइव लिंक में होते हैं वो, या कैंटीन की दुकान से भी मिल जाते हैं। एक नोट्स का मतलब आता है पट्टा 70-80 पेज का, उससे मतलब मैंने उसी से पढ़ा है। एक बुक आती है जैन एंड जैन, मैंने नहीं पढ़ी, मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, मैंने ट्राई करी थी, मुझे तो बड़ी बेकार लगी टू बी ऑनेस्ट। एक बहुत मोटी किताब है और बहुत लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, तो अब मर्जी है तुम्हारी। जो जो पीसीटी ब्रांच के अगर कोई हो तो वो पढ़ लेना, बिकॉज तुम्हारे आगे सब्जेक्ट्स भी यही हैं। नॉन पीसीटी वाले छोड़ देना, मतलब वो सिर्फ नोट से काम चल जाएगा। ओके ये नोट्स, अच्छा आई विल लुक फॉर द नोट फॉर ऑल यू गाइस, ठीक है? नोट्स को तो बिल्कुल देखना तूने है। एक ऊपर ही पूछ लेने से तुम लोग कोई ड्राइव लिंक आया होगा, एक सेमेस्टर का ड्राइव लिंक, इसमें सब होता है। हाँ भैया है किसी को हाँ, उसमें है, उसमें है, ये केमिस्ट्री के फोल्डर में ये पड़े होंगे। ठीक है, उसमें आप नोट्स बाकी केमिस्ट्री बहुत बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल भी बेयरली कोई आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, सारा थ्योरी है, बस मतलब नोट्स रट लेना और उल्टी कर देना, आराम से 90+ आ जाएंगे। भाई उस ड्राइव में नोट्स नहीं है, सारे चैप्टर किसी किसी के हैं। चलो मैं देख हाँ नहीं, वो चैप्टर वाइज नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स होंगे वाइट शीट पे। हिमांशु एक बार शुभांश भैया से ना आपको कंफर्म करके रूपलाल एग्जैक्ट नोट्स की भेज बात देना। करेगा कुछ? रूपलाल के डीएमई में होता है, मैं अभी आते हैं केमिस्ट्री की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अपार्ट फ्रॉम द नोट्स, यू डिड एनी क्वेश्चन और यू अरे जस्ट नहीं, आई डिडंट डू एनी क्वेश्चंस आते ही नहीं है। एक न्यूमेरिकल आता है, वो बहुत इजी 11-12 लेवल होता है सोशियोमेट्री का, मूल कांसेप्ट पे बिना पढ़े भी हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस की कोई खास जरूरत नहीं है, बस वही मतलब इट्स लाइक अ वेरी, जैसे स्कूल की तुमने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, इनऑर्गेनिक वगैरह, रट्टा मारो और जाके बस एकदम कुछ खास है नहीं। केमिस्ट्री में our teacher was good on about that something अबाउट केमिस्ट्री में हमारा टीचर, देखो केमिस्ट्री में हम नाम बता देते हैं, इनके क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ही वाज अ प्रीटी ओके टीचर। अनिल कुमार सर थे, अनिल कुमार सर अच्छे, हमारे सर अच्छे थे, बट वो मतलब वो अच्छे इन द सेंस इसलिए भी थे कि वो मार्क्स देने में भी बहुत अच्छे थे, लाइक मतलब मेरे को तो उन्होंने फुल ही दिए थे एंड सेम में, तो वो मार्क्स भी बहुत अच्छे देते थे सबको, और मतलब बड़े जैसे फन टीचर होते हैं ना, जो क्लास में जोक्स करते रहते हैं, बच्चों के मजे लेते रहते हैं, वो अच्छे सर थे। किसी के अगर अनिल कुमार हैं तो तुम मतलब लकी हो थोड़े। आरसी शर्मा के बारे में कुछ पता है? नहीं यार, मेरे को उन्हीं का पता है जिनसे मैंने पढ़ा है, तो बाकी का तो अनिल कुमार ये वाले नहीं है? नहीं, अनिल कुमार एक इसमें है केमिस्ट्री के, और दो अनिल कुमार के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल यार थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, मतलब आई फील फर्स्ट ईयर में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट यही है, मतलब पर्सनली दैट्स व्हाट लाइक आई वुड से, एंड ये लो स्कोरिंग भी है, तो इसमें स्ट्रेस मत लेना, अगर 75-80 भी आ गया तो भी शायद वो आ जाएगा, A+ तो आ ही जाएगा पक्का, लाइक 80-82 इज अ गुड स्कोर। हाँ वो तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, तो लाइक टीचर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिकल तुम्हारा। स्टार्ट कर दो, आप बुक से स्टार्ट कर लेना, जो अभी शिवांग बोलेगा, इट्स नॉट दैट टफ इफ यू रीड इट ऑन योर ओन, इनफैक्ट आई रेकमेंड। हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल में बताता हूँ, मैंने पर्सनली मतलब लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था पढ़ने में, बिकॉज मैंने इनिशियली नहीं पढ़ी थी पहले 2-3 महीने, लाइक अक्टूबर तक, लाइक सितंबर तक मिड सेम के लिए पढ़ी थी थोड़ी, बट बहुत ऊपर ऊपर से, और इतनी डेप्थ में मतलब मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मेरा काफी लैग कर रहा था, तो मैंने एक तो बहुत लेट स्टार्ट किया था, मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, बट लकीली बिकॉज ये सब्जेक्ट ही लो स्कोरिंग था, तो लाइक काम चल गया। बट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से पढ़ लो, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत लाइक आपका टाइम मतलब मांगेगा, इट्स नॉट लाइक इजी टू डू इट एट द एंड। और इसमें रिसोर्सेज में CL वाधवा बुक होती है, वो अच्छी है, छोटी है। एक थरेजा बुक जो इतने लोगों ने, वो मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई थी, मेरे को वो बहुत लाइक थोड़ी ज्यादा ही हैवी लगी थी टू डू इट इन द सेंस कि वो बहुत मोटी है, मतलब कवर नहीं हो पाती, तो CL वाधवा बेटर है। बाकी वही जो तुम्हारा ड्राइव लिंक है, उस पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, एक फोल्डर होगा उर्मिला मैम के नोट्स का, वो अच्छा है, तो मेरे को इसलिए यूज करना पड़ा था, बिकॉज जैसे मैं कह रहा हूँ मैं लेट हो गया था, मैंने बहुत लेट पढ़ा था सब्जेक्ट, तो मेरे पास टाइम कम था, तो आई नीडेड लाइक रिसोर्स जो लाइक मतलब जैसे एक दिन में मेरा पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट। जो एंड में अगर टाइम कम होगा तो ये यूज कर लेना, अभी टाइम है तो पूरी फिर बुक से ही पढ़ लो। Not just one, I also use notes and these are some pretty good ones, especially the last chapters. ठीक है, the last में ना काफी सारे आपके वैसे चीजें होते हैं, meters, you will get to that. हाँ राइट, देयर इज वन यूनिट इलेक्ट्रिकल में, एक लास्ट यूनिट है जो कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाई भी नहीं जाती, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आई थिंक, जिसमें गैल्वेनोमीटर और ये सब है, तो वो नोट से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बुक में भी नहीं है, आई थिंक बुक में भी नहीं मिलता वो। So ये नाम का नाम लिख दिया मैंने, you can pursue that. भैया एक बार लिंक भेज देना, हाँ वो तुम्हें भेज दूंगा। इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इज स्टार्ट अर्ली,
start early. हाँ मतलब अरे this is even going to take more time than maths I feel, because ये मतलब it's a very heavy subject. Questions भी solve करने में बहुत time लगता है because circuits बड़े complicated होते हैं, मतलब लंबा है, and मतलब जो EC या double EQ वो तो आदत डाल ही लो तुम लोग 4 साल लेगा। Also practice circuit questions क्योंकि यही आते हैं, थ्योरी आती है but थ्योरी नहीं आती, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल ये पेपर मोस्टली न्यूमेरिकल्स होता है, 80% न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन इसमें। Now coming on to हाँ बताओ। प्रीवियस ईयर्स की कोई यूनिफाइड रिसोर्स मिल सकती है हर एक सब्जेक्ट की, कि मतलब अलग अलग जगह जाना पड़े? तो ड्राइव में ही होता है सर, मतलब ड्राइव में 16 या 17 के आई थिंक, सबके नहीं है। हमारा पता नहीं, लाइक मतलब वो देखना पड़ेगा या अमन देख लेगा वो। I'll search for them. ऐसे यार कोई हर बच्चा अपलोड नहीं करता ना सारे लोग, that is due to DTU resources का ऐप बना था उस टाइम, so people collected all these things. I'll try. Okay, coming on ऐप मैंने एक बनाया हुआ है। okay हाँ DTU resources आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ बताओ जल्दी बताओ। हाँ भैया, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से चैप्टर करने हैं थ्रेजा में से? मैंने वही मैं कहूँगा, मैंने थ्रेजा ट्राई करी थी, मुझे बहुत मोटी लगी और कॉम्प्लिकेटेड लगी थी, तो मैंने छोड़ दी थी, फिर वादवा से पढ़ा था और नोट से। CL वादवा करो, मैं भी बोल रहा हूँ, it's a small book, it's like AK था versus हाँ एग्जैक्टली, थ्रेजा नहीं होगा ना, तो क्वेश्चंस में जाते हैं बताओ, मतलब इसमें क्वेश्चंस हम राइट एग्जांपल फ्री उन एग्जांपल्स को कर लेना। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। CL वालों को परस्यू करो, थ्रेजा वुड बी वेरी बिग इन द लॉन्ग टर्म, अभी आपको छोटी लग रही होगी। भैया मार्किंग मिल जाते हैं बुक्स के, मतलब कौन कौन से पेज या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? मार्किंग नहीं, CL वालों में हर चीज इंपॉर्टेंट है, छोटा सब्जेक्ट है, छोटे से जो उससे ऐसे कर लेना, जो ऑर्डिनेंस में टॉपिक्स लिखे ना उससे टिक मारते जाना। जैसे ऑर्डिनेंस में तो बहुत डिटेल में, ऑर्डिनेंस देखी है किसी ने? देख लेना यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वर्ड नहीं मिलता ना, मैं तो कंफ्यूजन होता है। नहीं वादवा में मिल जाएगा, थ्रेजा में नहीं है, वादवा में सब एग्जैक्ट, क्योंकि जो CL वादवा सर हैं वो DTU के प्रोफेसर हैं, तो वो उन्होंने DTU के लिए लिखी है बुक, उसमें मिल जाएगा सब। ओके थैंक यू भैया। Coming on to programming, so सबसे पहले did you have programming? नहीं I didn't have, मेरे पास बायो थी स्कूल में 11th, मेरे पास C++ नहीं थी, मैं बिल्कुल न्यू था, और मतलब मेरी तो नेचुरली जैसे जिनके पास नहीं थी उनकी, मेरे को तो फर्स्ट 2 वीक्स बहुत अजीब लगा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी स्टडीड C++ इन स्कूल, एंड तो वही था, मतलब मेरे को पर्सनली मतलब इनिशियली मुश्किल हुई थी, बट देन आई जस्ट लाइक स्टक टू द बुक, एंड लेटर सी जो है मैंने वही करी थी, एंड दैट इज इनफ फॉर द सब्जेक्ट। बाकी कोडिंग का तो जो आगे जिनको करनी है वो तो सब कुछ, मतलब वो गीक फॉर गीक स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू नो यू कैन लाइक डू अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मतलब तुम अगले 2 साल सुनते ही रहोगे ना, कोड शेफ, कोड फोर्सेस जो भी है, बट हाँ मतलब फॉर द सब्जेक्ट लेटर सी इज मोर देन इनफ, पेपर भी उसी से बनता है, एंड मतलब उसमें थ्योरी भी अच्छे से दी हुई है, बिकॉज इसमें थ्योरी भी आती है, इट्स नॉट जस्ट कोड्स तो कम ही होते हैं बहुत, काफी थ्योरी भी होती है, तो देखिए बुक सबसे बढ़िया है। About your coding journey, how did it went in 2 years? Because you almost started from not knowing coding when you entered the college. हाँ मतलब मैं personally to be honest, I'm not like a coder, I don't like code much, मतलब मेरा my journey, like I'm not going for a coding job or anything, like my path is थोड़ा different, तो मैंने like जितनी coding करी है I've done it mainly for my subjects and थोड़ा बहुत here and there as like required, so मतलब I think Aman is a better person to tell about this, because मैंने honestly इतनी competitive या कुछ करी नहीं है, so that's why I'm saying कि like let us see, like for your like subject this book is like more than enough, इससे काम हो जाएगा। Okay, and a bit further on the research side, like Metax के लिए how did it help? Yeah, MyTax, my project is not coding based, it's a management project, it's more on like business and math, because like that's the field I'm pursuing afterwards, so वो coding based है नहीं, तो मतलब वही coding का मैं like I'm not the right person to give advice, because मैंने personally वो fields नहीं not specifically on coding, but this is what I'm asking, मतलब if you are not passionate about something, you should definitely go on to something this is like on a side note, don't like follow like herd mentality to just like go behind coding job, if you're interested go for it, if you are not don't, because you know मतलब DT में बहुत opportunities हैं, you can do whatever you like, जो फील्ड आपको actually interesting लगे, तो मतलब day 1 से अगर like पक्का श्योर हो तो like start doing all the competitive and जो भी मतलब कोडिंग ब्लॉग्स, कोडिंग निंजा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि करना ही है, चलो मानो तो करना। भैया आपका क्या इंटरेस्ट है?
नहीं, मैं मैनेजमेंट में जा रहा हूँ यार, मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, कोडिंग नहीं कर रहा। We'll come on to that if we have time at the last. एक बार ये पूरा list complete करिए. तो coding का साथ में आगे it's completely not very necessary, but to score a good GPA, follow let us see. And the strategies, do theory and also do a bit of coding. That will be also beneficial. तो वो let us see में include भी हुई. In some platforms also other YouTube videos, since you were considerably new हाँ, let I us mean, not in first year but second year वगैरह के बाद I think Geek for Geeks is good. उस पे like थोड़ा अच्छे से resources मिल जाते हैं. And YouTube पे तो YouTube पे ना there are so many channels, like मतलब हजारों करोड़ों चैनल हैं जो कोडिंग सिखा रहे हैं. तो all are similar, तो जो आपको सही लगे कर लो. Like वो आई थिंक अमन दत्तरवाल के कुछ चैनल हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं, हजारों चैनल हैं, जो सही लगे कोई भी कर लो. आई थिंक सब सेम ही है मेरे हिसाब से. सर ऑनलाइन में बेस्ट कौन सा रहता है, मतलब अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, कोर्सेरा टाइप जैसे, वो कैसे है? नॉट फ्रॉम फॉर प्लेसमेंट्स आई वुड से, मतलब क्योंकि वो लाइक इंडियन ऑडियंस के हिसाब से नहीं है. अगर मतलब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो ये ब्लॉग्स निंजास वगैरह ये ठीक है. लाइक अमन ने वो किया है दिल्ली. यूडमी प्लेटफॉर्म कैसा है कोडिंग सीखने के लिए? वही कह रहा हूँ कि यूडमी और जो कोर्सेरा है ये लाइक ये अमेरिकन चेन्स हैं, तो ये इतना इंडियन उस हिसाब से टेलर्ड नहीं है. इट्स गुड फॉर लाइक जनरल, मतलब लाइक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट ये उतना स्पेसिफिक नहीं है अगर आप लाइक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो. भैया प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जरूरी है कि हम ऐसे कोई ज्वाइन करें, या फिर हम ऑनलाइन भी अभी रिसोर्सेज देख सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मतलब लाइक आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने कोई ज्वाइन नहीं किया था, वो भी अच्छा कर रहे हैं. बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी अच्छा कर रहे हैं. सबकी अपनी अप्रोच होती है, वो आपको सही लगे. And guys, मैंने भी आज तक join नहीं की है कोई organization for coding. So you can do it on your own, and like Shubham is saying, see, first thing is for internship, for any internship is your CGPA, and for that, like he's saying, I didn't feel that coding from any organization is necessary to pursue that, to pursue good CGPA. After that, we'll have a webinar on this also, maybe competitive programming and interview coding for interviews after like बाद में. ठीक है, उसमें आपकी चीजें क्लियर करते हैं. कमिंग ऑन टू ईडी इन जनरल, ईडी यार बड़ा गंदा सब्जेक्ट है. मेरे को पर्सनली सबसे डिसलाइक सब्जेक्ट है मेरा फर्स्ट ईयर का, बट करना पड़ता है. तो इसमें एक बुक तो एनडी भट्ट बुक आती है, जो स्टैंडर्ड बुक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है एज सच. उसमें बस लाइक पेपर से पहले लाइक जस्ट सी उसमें कैसे आपको, बिकॉज इसमें आपको कोई थ्योरी पेपर नहीं देना, यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ द डायग्राम्स. पर्सनली मुझे नहीं पता ऑनलाइन में वो क्या कर रहे हैं, कैसे असेस करेंगे, तो दिस माइट नॉट वर्क. बट हाँ, जस्ट लाइक रीड उसमें द स्ट्रेटजीज टू ड्रॉ द फिगर्स लाइक जो हैं. एंड आई वुड से अगर टीचर अच्छा है तो क्लास में अटेंटिव रह लो, ये सब्जेक्ट क्लास में ही कवर हो जाएगा अगर लाइक टीचर अच्छा है. मुझे ये पूछना था, जो डिटेल की लाइब्रेरी है, तो मैं मुझे ये पूछना था, जो डिटेल की लाइब्रेरी है उसमें सर सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई बुक मटेरियल मतलब मिल जाएगा सर? आई थिंक है, मतलब थोड़ा बहुत मिल जाएगा प्रोबेबली. लाइक मैंने देखा नहीं, बट आई थिंक है, बिकॉज बहुत लोग प्रेप करते हैं उसकी, होगा है मुझे में. है एक्चुअली माय फ्रेंड इज डूइंग, सो यू इट्स अ बिग लाइब्रेरी. एंड अभी सब ऑनलाइन है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ऑफलाइन में देयर इज अ स्ट्रेटजी, गो बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स एंड हाइड योर बुक्स, ताकि कोई ले ना. कम बुक्स है, इससे ज्यादा भी नहीं है, बट है बुक्स, सारी बुक्स हैं इनका. आपको बीएमई BME में there are two parts, A and B. So A is the easier part. It's numerical in nature. उसमें PK Nag is the book जो मतलब standard book है, like अच्छी भी है. And उससे like relevant chapters and relevant areas कर लेना as per the ordinance. उससे like relate कर करके I think 5-6 chapter ही करने जितना हमारे syllabus में होता है. और BME B थोड़ा मुश्किल है. उसमें वैसे like यार ये mute कर लो एक second गौरव, थोड़ा disturbance. BME B में रूपला नोट्स इज लाइक द स्टैंडर्ड रिसोर्स, बट लाइक मतलब पर्सनली मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, तो आपका जो ड्राइव लिंक है उस पे एक हैंड रिटन नोट्स का भी सेट है, वो थोड़ा बेटर है. इट्स स्मॉलर इन साइज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड. बट अगेन मतलब सर कोई बुक नहीं है मतलब BME B में? हाँ सर, हाँ B में बुक आती है, पर बहुत पॉइंटलेस है. हजरा चौधरी या हजरा चौहान एक कोई बुक होती है, मतलब मैंने ली थी, मैंने एक बार भी नहीं खोली थी. हाँ, यही रिकमेंड किया हमारे टीचर ने भी. वो अरे तुम नहीं खोलोगे यार, वो कोई नहीं पढ़ने वाला, इतनी बोरिंग बुक है, नींद आ जाएगी, कोई नहीं खोलता वो. मतलब ऐसी लेके रखनी है मेरी तरफ, पैसे वेस्ट करने, ले लो, पढ़ोगे भी नहीं. जो क्लास में नोट दिए काफी हैं.
हाँ मतलब अगर टीचर अच्छा है तो अरे बीएमई बी ना इट्स लाइक अ वेरी जेनेरिक सब्जेक्ट इन द सेंस कि उसमें सिलेबस इतना ज्यादा है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 4 मंथ्स में सब कुछ कर पाए। तो वो टीचर्स को भी पता है, तो वो मार्क भी वैसे ही करते हैं कि मतलब उन्हें पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि सब ढंग से पढ़ाएं, तो वो वैसे ही करते हैं। इसमें बस मैं ये कहूंगा फोकस मोर ऑन द डायग्राम्स। इफ योर डायग्राम्स आर गुड इन बीएमई तो यू विल लाइक गेट अवे विद अ लॉट ऑफ मिस थ्योरी। डायग्राम अगर सही है तो कम थ्योरी का भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो फोकस मोर एक ऑन बार द सर वो डायग्राम। ड्राइव की लिंक भेज देना। हाँ मेरे पास तो है नहीं यार, मतलब अमन से ले लेना। हाँ तो भैया BME के साथ। हाँ पूछो। तो फर्स्ट ईयर में एकेडमिक और कोडिंग को कैसे मैनेज करें? मतलब अभी फर्स्ट ईयर में आए तो मतलब एकेडमिक्स का बहुत पढ़ा रहे सर, इसलिए मतलब वो टाइम नहीं मिल पा रहा, स्ट्रेस हो रहा है पहली बार ऐसा, मतलब कोडिंग करने हाँ का तो टाइम नहीं मिल स्टार्टिंग में लगता है इतना स्ट्रेस मत लो, अच्छा, मैं मैं कह रहा हूँ टेंशन मत लो अभी। मतलब तुम्हें कल नहीं बैठना नौकरी के लिए, 3 साल हैं अभी, कोडिंग धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। अभी बस लाइक 1 डे एट अ टाइम, आराम आराम से जितना मैनेज हो उतना करो, बस सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहो। मतलब अमन तूने कब स्टार्ट करी थी कोडिंग? आई डोंट थिंक हम दोनों किसी ने भी फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी कर दी थी, तो उसकी टेंशन मत लो अभी। Just focus on let us see. Just focus on let us see and maths. Maths is an important subject. Second year में मैंने धीरे धीरे start की थी. First year में के starting में I didn't do as much. So don't take much stress. 1 घंटा let us see भी पढ़ लो, 2 घंटे let us see पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो काफी है. You are just doing coding ही तो back end में, ठीक है? Let us see पढ़ के भी and implementing that. Second year से जान लगा सकते हो अपनी उस चीज में, क्योंकि you'll get a proper idea कि आप कॉलेज में कैसे चल रहा है, कॉलेज का भी दुनियादारी का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, क्या इंटर्नशिप्स क्या होती है, प्लेसमेंट। सर एक क्वेश्चन था सर, डेटा साइंस से रिलेटेड सर कोई डीटीयू में ना सोसाइटी है ना कोई उसके रिलेटेड कुछ मतलब पढ़ाता है, तो सर डेटा साइंस के अगर किसी का इंक्लिनेशन है उधर उस साइड जाना चाहता है, हाँ इन चीजों के लिए वो अच्छे हैं, कोर्सेरा वगैरह अच्छे हैं वहाँ, काफी लाइक हाँ तो सर इसीलिए वो मैं कोर्सेरा का कह रहा था आपको कि क्या इसके लिए रेलेवेंट है, वही मैं कह रहा हूँ ना मैं, वो C++ प्लेसमेंट के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, इन चीजों के लिए रेलेवेंट है, पाइथन या डेटा साइंस एमएल वगैरह सीखना। हाँ उसके लिए अच्छा है। डेटा साइंस का मैं भैया थोड़ा जो आईटी बता देता हूँ। फर्म्स होती हैं उसमें प्लेसमेंट किस बेसिस पे होता है? किस होता है? जो कंसल्टिंग फर्म्स आती है उसमें किस बेसिस पे प्लेसमेंट होता है? यार अभी इंटर्न में तो कम ही आती हैं, कोई आई भी नहीं है अभी, तो प्लेसमेंट में जो आती हैं उसमें वो कोडिंग टेस्ट तो नहीं होता कोई भी, मतलब जितना मतलब मेरे को पता है कोई कोड मतलब नहीं होता, आई एम श्योर कोडिंग टेस्ट नहीं होता, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और उसके बाद देन गेस्टिमेट्स और केस इंटरव्यूज होते हैं, वो थोड़ा लाइक डिफरेंट चीज है, मैं बता दूंगा एंड में अगर स्पेसिफिक जानना हो। ठीक है, सिंस बीएमई ए के लिए कौन सा बुक बताई थी सर? पीके नाग इसमें लिखा हुआ है इसकी। सर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना? ए न्यूमेरिकल है, बी थ्योरेटिकल है, ए न्यूमेरिकल है पूरा। Another important question: which societies did you join, and should you recommend any society that they can, or how can they explore better at college? इंटरेस्ट डिपेंडेंट है, मैंने पर्सनली लाइक जिन चीजों में मेरे को इंटरेस्ट था वो वाली ज्वाइन करी थी, लाइक आई वाज अ डिबेटर इन स्कूल, सो आई जॉइंड द डिबेटिंग सोसाइटी में, अभी भी उसमें हूँ, अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एंड उसके अलावा मतलब इंटरेस्ट डिपेंडेंट है, लाइक आई जॉइंड द डिबेटिंग सोसाइटी, मैंने इनएक्टस ज्वाइन करा था, और आई थिंक एसेट्स ज्वाइन करा था, I2TS ज्वाइन करा था, फिर एक दो छोड़ दी थी बाद में जब टाइम कम हो गया था, तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, मतलब मैंने ऐसी कोई ये सोच के नहीं करा था कि ये मेरे को इंटर्न दिलाएगा या ये, मतलब ऐसे इस मोटिव से। हाँ, so do join society if you are interested. Don't go after ये कि अगर वो आपको ये बता रहे ना कि आपको मतलब इंटर्न से प्लेसमेंट लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्चुअली कोई सोसाइटी के हाथ में नहीं है आपके इंटर्न से प्लेसमेंट लगाना. They can guide you better. This is what actually we are also going to guide you better. Not actually हम दावा नहीं कर सकते आपकी प्लेसमेंट और वो, neither can anyone. So follow your passion, follow your interest, and अगर वो हो तो I guess it's possible that you achieve even bigger heights. FEC का any strategy? हाँ, FEC तो हर सेमेस्टर में डिफरेंट होता है, तो मतलब मैंने जो लिया है मैं वही बता सकता हूँ। मैंने EVS लिया था एक, जो लाइक कंपल्सरी है ही, तो उसमें दिस बुक कॉल्ड कौशिक एंड कौशिक, वो मतलब अच्छी बुक है आई फील उसमें, बट बिकॉज इलेक्टिव है तो इसमें ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं होता, उसमें बस ऐसा करना, लाइक उसमें ना हर चैप्टर में लाइक जो काम की चीजें हैं वो बोल्ड में लिखी हुई है, लाइक हर पेज पे, तो बस वो बोल्ड वाली सेंटेंसेस याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज वो क्वेश्चन वैसे ही बहुत जेनेरिक होते हैं, लाइक द क्वेश्चंस आर वेरी जनरल, लाइक दे विल आस्क यू नो कि हाउ कैन यू प्रिवेंट पोल्यूशन, तो ये सब तुम्हें वैसे भी जनरल नॉलेज से भी पता ही है, तो खुद भी लिख दोगे, तो EVS में मतलब ज्यादा स्ट्रेस की कोई नीड नहीं है।
एंड उसके बाद आई हैड स्पोर्ट्स इन सेम, उसमें कुछ ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, पब्लिक स्पीकिंग थी उसमें भी कुछ नहीं करना, कम्युनिकेशन स्किल्स था मेरा एक सेम में, उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल्स हैं जस्ट डू दैट, एक दो नॉवेल्स पढ़नी होती हैं वो हैं, और बाकी थ्योरी होती है उसमें थोड़ी, वो नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन ड्राइव वगैरह पे पढ़े कोई बुक नहीं। Which was the easiest among these four? यार जो नॉन एग्जाम वाले हैं वो इजी होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उनमें पेपर नहीं देना पड़ता, बट देन उनमें ग्रेड भी कम आता है। जैसे स्पोर्ट्स जो है उसमें एग्जाम नहीं देना तो आपको कुछ नहीं करना, बट उसमें फिर ओ नहीं आता, A+ ही देते हैं मोस्टली, कुछ लोगों का आता है, बट वो होते हैं जो जैसे टीम में खेल रहे होते हैं, तो मोस्ट जनता को नहीं देते, तो उस हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा। आई वुड से EVS और कॉम स्किल्स में, लाइक पर्सनली आई थॉट कॉम स्किल्स वाज इजियर देन EVS, बट दोनों इजी हैं। FEC इज लाइक अ बैंकर, आई थिंक इसमें तो तुम्हें पक्का वो लाना है, और इसमें लाइक 75% जनता का वो आएगा, सबका वो आता है इसमें। Sir, what about language such as German? I hadn't studied German in like my school, so I didn't take it. But if you have studied it, take it. It's a sure do. If अगर किसी ने लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है, फ्रेंच, जर्मन, एनीथिंग इन स्कूल, तो ले लो, बिकॉज वो उससे भी इजी होगी। जिसने पढ़ी हुई है वो पक्का हो आएगा। Right. कोई भी ऐसा लैंग्वेज मत लेना ना कि दोस्त जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज प्रीटी इजी, बट these choose something which you have already done somehow, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। If you are sport enthusiast and you play sports, then sports is a go-to for you. If you're in a team, मतलब तुम कॉलेज की किसी भी टीम में हो तो ले लेना, फिर तुम्हारा पक्का वो आएगा स्पोर्ट्स में, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी स्पीकर से, आई वाज ऑलरेडी डिबेटर, तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप ही वो आ गया बिना कुछ करे, तो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है टेक दैट, अगर तुम मतलब जो भी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ले लो। सर इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन कैसा है? यार मैंने नहीं लिया, मेरे को ऑनेस्टली बिल्कुल आइडिया नहीं है यार। सी हमारा मेन मोटिव है ना आपको इजी वाले बताइए। इफ यू हैव इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन का सिलेबस देख सकते हो। इफ यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर व्हिच यू हैव डन बिफोर प्रीवियसली और एनीथिंग इंटरेस्टिंग, देन यू कैन परस्यू इट। नहीं तो टेक दिस इजियर वंस। पब्लिक स्पीकिंग में भी अगर A+ लाना है एंड यू आर इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन एंड गो फॉर स्पोर्ट्स। सिमिलरली एनीथिंग व्हिच यू फाइंड अच्छा जो लग, मुझे मैथ पसंद थी तो मैंने लॉजिकल ली सिमिलरली, ठीक है, एंड इट वाज वेरी इजी पर्सनली। हाँ मतलब FEC बेसिकली ना आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपको बिल्कुल टाइम ना देना पड़े, ताकि आप बाकी 5 सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओ। तो टेक द इजीएस्ट पॉसिबल, तो आपकी CG भी बढ़ जाएगी उससे। कम्युनिकेशन हाँ शुभम कम्युनिकेशन का पूछ रहे हैं। हाँ कम्युनिकेशन इजी है, मतलब इफ यू लाइक इफ यू रीड देन इट्स इजी, मतलब एक दो नॉवेल्स पढ़नी होती हैं, बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं दैट यू नो, थोड़ी सी थ्योरी होती है, 15-20 पेज के नोट्स हैं, मतलब प्रीटी इजी टू डू। और जो अजीब से FECs है जैसे अप्रिसिएशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनका हाँ देयर आल्सो इजी, वो सेम टीचर पढ़ाता है, कॉम स्किल्स जो पढ़ाते हैं, दिस द सेम टीचर व्हिच टीचर्स दीस सब्जेक्ट्स, सो देयर आल्सो स्कोरिंग उसमें। they just give you like 4-5 books and 4-5 short stories, uska then you have to like give a exam on those, like unke based questions, so जैसे स्कूल में 11th-12th में वो मतलब बोर्ड्स में पढ़े होंगे ना चैप्टर, इट्स लाइक दैट। एंड ये सारे ना ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट मतलब ओपन बुक, सो प्रेफरेबली जो कुछ भी बुक पे पढ़ो मार्क भी कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैं क्या करता था, PDF लेता था, तो आई यूज्ड टू ईदर मार्क दोस इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दो, या फिर जस्ट मेक सम नोट्स ऑन बेसिस ऑफ दैट। इट्स ओपन बुक, इसका फायदा उठाओ। ये वाली चीज कभी नहीं आ पाएगी, ओपन बुक टेस्ट वाली चीज। सो दिस इज अ पर्सनल रिकमेंडेशन। सर FEC तो नहीं है बट या सर FEC के ग्रेड्स ऐड होते हैं? हाँ होते हैं। FEC वही तो मैं कह रहा हूँ, बैंकर है, उसके ग्रेड ऐड भी होंगे, और इसमें स्कोर करना सबसे इजी है अमंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो इसमें ऐसा ही लेना कि पक्का वो आ जाए। और भैया iOS की सोसाइटी कैसी है? नहीं मैंने बोला था कि मेरे को नहीं पता, मैं नहीं हूँ उसमें, तो मैं वो बाद में क्लियर कर दूंगा आपके बाकी जो जनरल डाउट है। एक बार शुभम से स्पेसिफिक आप ये वाली चीज जान सकते हो कि CG पे कैसे स्कोर करनी है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फाइंड टू प्लेसमेंट में करना। ये मैं क्लियर कर दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस अभी जो नए पुट किया ना शुभम, अगर ये सब बोल करता आई सी। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ध्रुव माइक ऑफ कर देना। जस्ट अ मिनट। अमन देख इफ दिस लाइक एनी प्रैक्टिकल फाइल्स का बता दो भैया, कैसे मतलब कैसे क्या? अरे वो लास्ट ईयर की ना कहीं से फाइल जुगाड़ करवा लो, मतलब किसी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, वो कॉपी कर लो बस, या मतलब लैब मैनुअल मिलती है यार, मतलब मोस्ट सब्जेक्ट्स में तो
मतलब फिजिक्स में तो लैब मैनुअल होती है, इलेक्ट्रिकल में भी होती है, मतलब लैब मैनुअल का पीडीएफ मिल जाता है बहुत आराम से, 30 पेजेस के आसपास की होती है, कॉपी करना है बस। तो जो फ्लैग लिस्ट में तो नहीं होता कि सेम करेंगे तो नंबर नहीं देंगे, कॉपी कर लिया किसी का? नहीं, लैब मैनुअल तो कॉपी करनी है, वो तो मतलब वो तो बनाई इसलिए कि कॉपी करो। ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली करनी है, एक्सपेरिमेंट तो खुद ही करना है, बट लाइक मैं बाकी पार्ट कह रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन वगैरह अब वो अब मेरे को नहीं पता ऑनलाइन में तुम कैसे कर रहे हो, हमें तो लाइक हम तो लैब में करते थे ना, तो वो कर लेते थे वहाँ पे। तो ऑनलाइन में कैसे हो रहा है, लैब कैसे हो रही है, लाइक क्या बोल रहे फिजिक्स अच्छी हो जाए, वर्चुअल बेकार है। फिजिक्स में तो virtual- सिमुलेटर पे हो जाती है भैया, अच्छा हाँ, ऑनलाइन तो सिमुलेटर है। मतलब रीडिंग आ रही है तो अपनी अपनी लिखो, रीडिंग मत कॉपी करो। केमिस्ट्री में टाइट्रेशन है तो वो कुछ नहीं हो रहा वर्चुअल, और वर्कशॉप में तो प्रैक्टिकल है कि नहीं वही नहीं समझ आ रहा, थियरी जैसा लग रहा है। हाँ मतलब ये सर, थोड़ा ऐसा मान लो कि बुक से ऑनलाइन के reading चक्कर में करवाते हैं। काइंड ऑफ सैड, बट लाइक क्या ही कर सकते हो, जस्ट लाइक इतनी टेंशन मत लो, फिर लैब्स में अगर जिनमें नहीं हो रही होगी ना, उनमें सबको वो अपने आप ही अच्छे नंबर दे देंगे। मतलब टीचर जैसे कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, किसी को कोई ऐसे मतलब नफरत नहीं निकालनी है यार तुम पे। लैब्स तो इनफैक्ट ऑनलाइन काफ़ी सही हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो कई बार तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं काम कर रहे होते थे, तो रीडिंग्स कहाँ से लाते थे? तो ऑनलाइन में एटलीस्ट रीडिंग के लिए तो तुम्हें श्योर हो कि रीडिंग्स आ जाएंगे और ऑब्जर्वेशन खुद की लिख सकते हो। that is good. और किसी को कोई डाउट हो? क्रेडिट समझ नहीं आ रहा कैसे चल रहा है, क्योंकि क्रेडिट्स credit- मैक्सिमम 32 है, पर उतने तो हम सब्जेक्ट्स ही नहीं ले सकते एक सेमेस्टर में। नहीं तुम ले सकते हो, दैट्स द थिंग। सो टू गेट योर डिग्री यू नीड टू गेट 168 क्रेडिट्स के आसपास, बट वो जो एंड वो सब्जेक्ट तुम्हारे ऊपर होता है हाउ यू पार्टीशन दैट अक्रॉस योर 8 सेमेस्टर्स। तो बट वो जो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन है वो तो भर चुकी है, वो तो उन्होंने कहा था 5 मेन सब्जेक्ट्स प्लस 1 एफईसी, तो उससे 32 तो हो नहीं रहे। इफ यू वांट एडिशनल, आपको अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है एग्जाम डिपार्टमेंट में, तो वो एडिशनल अलाउ कर देते हैं, कोई लेता नहीं है बिकॉज यू नो वो हो जाता है लाइक हैवी हो जाता है। बट मतलब किसी को बहुत मन है 8 सब्जेक्ट पढ़ने का, पूरी अपनी मतलब पिलाई करानी है, तो ले लो, मतलब अलाउड है, ऑफिशियली अलाउड है। उसका पर्पस ये है दैट दे वांट कि इफ समवन वांट्स टू डू दोस लॉन्ग इंटर्नशिप, जैसे बाद में ना यू हैव सर्टेन इंटर्नशिप्स अब्रॉड जो 6 मंथ्स या 1 ईयर की भी होती हैं, तो दे अलाउ यू टू फिनिश योर कॉलेज इन लाइक 3 इयर्स, ताकि तुम 1 साल इंटर्नशिप करने बाहर जा पाओ, वो इंटरफेयर ना करे। तो उसका मोटिव ये है, पर क्योंकि वो कोई करता नहीं है तो कोई लेता नहीं है, बट मतलब ऑफिशियली इट्स अलाउड। ओके, थैंक यू। Okay. Shubham, towards MBA, how can students be inclined? अभी डोंट बी इंक्लाइंड, अभी तो मतलब फर्स्ट ईयर में यू वोंट बी एबल टू डू मच, जस्ट लाइक डू थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू एंड लाइक स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल फ्रॉम डे वन। मतलब जस्ट मतलब डू थिंग्स जो मतलब जिसमें जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट हो, लाइक डोंट पिक थिंग्स वही कि जैसे जो मैं पहले कह रहा था कि जैसे सब कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग मत उठा लो, अगर इंटरेस्ट है तो जरूर करो, नहीं है तो कोई ऐसे जबरदस्ती में मत करो। सिमिलरली फॉर एवरीथिंग एल्स, अगर तुम्हें रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है रोबोटिक्स करो, गाड़ियां बनाने में इंटरेस्ट है वो वाली सोसाइटी ज्वाइन कर लो, क्विजिंग करनी है वो ज्वाइन कर लो, जो करना है वो करो, क्योंकि इफ यू डू समथिंग यू लाइक उसमें तुम अच्छा भी करोगे, तुम्हारी प्रोफाइल भी बनेगी एंड वो ऑटोमेटिकली मतलब वो बनते जाएगा। बाकी स्पेसिफिकली अभी कुछ नहीं कर सकता मैं फर्स्ट ईयर में। और भैया जैसे प्लेसमेंट के टाइम पे एम्पलीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन उसकी कोई तैयारी नहीं करनी यार, वो 10th लेवल मैथ्स होती है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री वगैरह की तैयारी नहीं करनी। सॉरी किसके लिए? एमबीए के लिए? मैंने सुना नहीं। नहीं, दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर लाइक नॉन टेक कंपनीज, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप। सर ऐसा होता है जैसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे ऐसे इसलिए नहीं करता सर। यार योर वॉइस क्रैक्ड, एक बार रिपीट करना। सर मैंने ये कहा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो कैसा सर ऐसा होता है जैसे कि एसएससी के 10th लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं कह सकते हो, मतलब वही होता है मतलब बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश ही होती है, उसी लेवल के आसपास कह सकते हो। और सर ये जो प्लेसमेंट आता है उसमें हमारा कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछते हैं या सीजीपीए देख के खत्म? उसके अलावा पूछते हैं, अमन बता देगा इसका डिटेल में। एंड शुभांग से वही पूछ सकते हो जो कोई और आंसर ना दे पाए, सो आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर स्पेसिफिकली द इंटर्नशिप यू हैव राइट नाउ? उसके बारे में Yeah, and those who are that's an open portal, वो like open internship है, उनका पोर्टल अगस्त में खुलता है, you just have to like apply normally, like answer a few questions, give a statement of purpose, give your CV, and then they take 2-3 rounds of interviews and उसके बाद यही process है।
बाद ठीक they है। like let you know after decision. सर जो इंटरव्यू सर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब वो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर पे भी पूछ सकते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने क्या पढ़ाया नहीं है नहीं, तो they're not mostly subject based, वो आपकी CV based होते हैं, जनरल इन नेचर होते हैं, अनलेस आप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका पूछेंगे। जैसे मतलब जैसे अगर आप कोडिंग जॉब के लिए तो उसमें they'll ask you कोडिंग सब्जेक्ट्स। मेरा प्रोजेक्ट कोडिंग रिलेटेड नहीं था तो मुझे कुछ नहीं पूछा था कोडिंग का, तो मेरा जिस हाँ जिस चीज के लिए अप्लाई करो उसी का पूछेंगे ना वो, दैट्स व्हाट दे केयर अबाउट। एंड आई गेस बोलो। मैथ्स के सॉल्यूशंस जब मिलते नहीं है तो क्या करना है, कहाँ से लाऊं मैं हाँ, सॉल्यूशंस? that's what I said ना, वो आप एक peer group बना लो, find a few friends, I know it's difficult अभी online में, but like find a few friends, अगर आपके स्कूल से कोई सेम बंदा आया है इस कॉलेज में, find a few friends जो like आपके जैसे हों in their thought process and academics and stuff, and मिलके you guys can work out, because किसी ना किसी को कहीं से कुछ रिसोर्स मिलेगा तो you can share with everyone, तो सबका सबकी हेल्प हो जाती है। एक्सरसाइज के बिना मार्क्स नहीं आ सकते क्या? नहीं आ एग्जाम सकता, that's what I said ना, आप like अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, मैथ्स में there is no end to practice ना, if you have time कर लो, नहीं है तो छोड़ दोगे तो भी you can get the same amount of marks, not a ओके। must be. एक्सरसाइज इज नॉट फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कहाँ से करें, कोडिंग इंटर्नशिप? फर्स्ट ईयर में हाँ चलो मैं वो अकेले बताऊंगा, ऐसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फर्स्ट ईयर में ना इंटर्नशिप पे फोकस करना। कोडिंग की तो मिलेगी भी नहीं अभी, टू बी ऑनेस्ट, मतलब क्योंकि लाइक अनलेस यू हैव दोस स्किल्स अभी कोई लेगा भी नहीं फर्स्ट ईयर। they do but that is TA वाला आपको मिलेगा but that is not coding, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको अभी से नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैं जा रहा हूँ इंटर्नशिप में, आई डोंट थिंक सो वो भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना इंटेंसिव कराएंगे, दे विल जस्ट मेक दिस बग्स ठीक करना, मे बी दैट। सो अभी आप कोडिंग को सीखो, अप्लाई करने की जगह उसकी थोड़ी कम मिलेगी अनलेस एंड अनटिल यू लर्न डेवलपमेंट एमएल वेब, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। एंड शुभांग से एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, हाउ does your CV look actually for that internship when you applied? What were the main things that you think कि उन्होंने देखा apart from all the CGPA? I don't think उन्होंने मतलब my profile was aligned to the project I had applied for, because like जिन societies में मैंने जो काम किया था that was similar to the project I was applying for, so I think that that might have like attracted them because I had some experience in the field as compared to someone जो like बिना background के आ रहा है, so I think that like works। अगर मैं जिस भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, make sure you have a मतलब background in that। for example अगर आपने 2 साल कोडिंग करी है and then you apply for some मतलब weird some management role, तो आपको कोई नहीं लेगा ना, because आपने कुछ किया ही नहीं है उसमें। and similarly अगर आपने 2 साल कुछ मतलब कोडिंग नहीं करी है तो आपको कोई कोडिंग रोल भी नहीं लेगा, तो मतलब apply to the job जिसके लिए आपने काम करा है कॉलेज में। And इनको ये भी पूछना था finally what did you apply for? Can you explain a bit on the role which you are applying for? अरे हाँ I have applied, I got an internship Canada में at the University of Waterloo। it's a project on designing pandemic resistant supply chains। अभी I don't know तुम लोगों को supply chains और supply chain management का कितना पता है। It's a business math project, मतलब it's not coding based, it's a math project जिसमें like I'm supposed to develop a mathematical model to मतलब make scheduling and optimize like processes of supply chains। मतलब अभी नहीं समझ आएगा यार मैं क्या बताऊँ। हाँ अभी थोड़ा नहीं समझ आएगा, it's quite business oriented, but just finally in the society what things that you specifically focus on to gain that, क्योंकि society में maybe many people do put the effort, maybe many people don't put the effort, so that I guess will be the last। सोसाइटीज में मतलब वही मैं जो कह रहा था, चूज सोसाइटी जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट करें, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप खुद से ही करोगे काम, और काम करोगे तो अपने आप आगे भी बढ़ोगे और लाइक ग्रो भी करोगे, डेवलप भी करोगे, रिकॉग्नाइज भी होगे। तो जहाँ भी इंटरेस्ट है, जो भी मन है, डू जॉइन दोस एंड लाइक वर्क वेल इन दोस, वो कोई भी हो, लाइक द नेचर ऑफ द सोसाइटी डजंट मैटर। मतलब वही अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, जो भी आईओएसटी वगैरह कह रहे थे, अगर वो ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें अच्छे से काम करो। कोई नॉर्मल कोई को कल्चरल मतलब थिएटर ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें अच्छे से लाइक पुट योर बेस्ट एवरी डे व्हेन यू गो टू प्रैक्टिस। जो भी करो, ज्वाइन स्टफ जिसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट। हाँ ठीक है। भैया अगर हम किसी सोसाइटी में इंटरेस्टेड हैं और उस सोसाइटी के इंटरव्यू में हम पार्ट लिया और वो हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करें? किसी और सोसाइटी में ट्राई करो, कमी थोड़ी है। और अगर उसमें लेना हो तो या स्किल बिना अगले साल ट्राई कर सकते हो। अच्छा, सोसाइटीज की जगह टेक टीम्स में होना क्या एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है?
again that's what I said na, it depends on what you are aiming for. मतलब वो अभी obviously clarity नहीं होगी, but like if you want to go for a core job in मतलब you know something like a core mechanical job, if you want to work in companies like Bajaj या Honda या ऐसी कुछ, तो उसके लिए tech teams are very useful. But अगर आपको उस सेक्टर में ही नहीं जाना तो then मतलब अगर आप 2 साल you know you're learning how to suppose build cars और आपको उसमें जाना नहीं है तो what's the point of learning that? Like if you want to go there then definitely join. Depends on what your overall ambitions are. और भैया अगर CGPA अच्छी आ गई तो प्लेसमेंट सेफ समझे हम अपनी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह से देनी पड़ेगी. ठीक है. सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ कुछ पूछना है आपको? भैया इसमें कैसी जॉब्स लगती हैं बजाज मारुति में अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो? हाँ कोर जॉब्स होती हैं यार इसमें, यही मतलब मैं मैकेनिकल का नहीं हूँ तो मतलब जितना मेरे को पता है लोगों से, वो यही कोर है, मतलब गाड़ियों बनाना, स्टफ क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, नॉन कोडिंग जॉब्स हैं. सर वो जो मार्केटिंग स्कीम वगैरह है, जैसे वो कोई बोल रहा था अभी कि 40-25 ये सब, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये कहीं पे है, वेबसाइट पे तो नहीं है? ये तो उस पे है ना, आपका नोटिस आया हुआ है ना, लाइक आपका सेमेस्टर का है, वेबसाइट पे सब है, वेबसाइट पे सब मिल जाता है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ता है. बट ये नोटिस आया हुआ है ना आपका कि सेमेस्टर में कैसे मार्किंग होगी. राइट. ठीक है. और किसी को और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन शुभांग से रिलेटेड? सर ये कोडिंग टेस्ट जो होता है खाली टेक कंपनीज ही लेती हैं मतलब? टेक एंड सेमी टेक, टेक एंड सेमी टेक, मतलब सेमी टेक बैंक्स वगैरह भी लेते हैं जो टेक रोल के लिए आते हैं, प्योर नॉन टेक नहीं लेती. लास्ट थिंग, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी जान लो. व्हाट आर द स्कोप ऑफ नॉन टेक इंटर्नशिप्स इन DTU, सिंस अगर you might have been looking at that also, अगर बिल्कुल you are going on. मतलब इस साल कम है, लास्ट ईयर फिर भी थी ज्यादा बिकॉज़ ऑफलाइन था, इस साल माइट बी बिकॉज़ द पैंडेमिक, बट इस साल थोड़ी कम है. बट देन वही है, मतलब यू नो मतलब मेरे को पर्सनली मैं इतना इंटर्न के पीछे नहीं भाग रहा था तो मेरे को इतना लाइक टेंशन नहीं था. बट लाइक थोड़ी टैक्स से तो ऑब्वियसली कम ही है, बट ऑफ कैंपस कुछ ना कुछ मिल जाता है. Of campus management, if they मतलब my tax के लिए I know that it requires a good CGPA, but other than that there are off campus opportunities according to you, and on campus also. My tax के लिए the cutoff is 8.5 for boys and 8 for girls. That's the अच्छा, okay. ठीक है. That's अगर आपकी CGPA मेंटेन्ड है, अगर आपकी CGPA मेंटेन्ड है तो आपको इंटर्नशिप लेने में कोई ब्रांच रिलेटेड बायस फेस करना पड़ेगा? हाँ होता है, मतलब कंपनीज अलाउ नहीं करती, यूजुअली डबल ई के नीचे अलाउ नहीं करती, इलेक्ट्रिकल के नीचे जो भी ब्रांचेस हैं, मतलब मोस्ट कंपनीज कर भी देती हैं. हाँ ईपी वही मैं मतलब वही कह रहा हूँ बेसिकली, COE, IT, SC, MC, EC, EE और EP, ये 7 मोस्टली 90% कंपनीज में बैठ जाएंगे, और बाकी नहीं बैठ पाएंगे. बट सम कंपनीज बाकियों को भी अलाउ कर देती हैं, कुछ ओपन फॉर ऑल. Also off campus भी है, so what if the guidance which we are giving is compulsory or is quite necessary for off campus also. It's high GPA, good for a sort of good core skill, any field you are going, you need to have good skills not only for internship but खुद के लिए भी. You are gonna do that for most probably 40-50 तक, so you need to love that job also. It's very important. And और कुछ पूछना शुभांग साहब ने? एमसीए में कितनी परसेंट प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब एमसीए कंपेयर टू आईटी सॉफ्टवेयर? सब में हो जाती है प्लेसमेंट, तो मतलब सारी ब्रांचेस में अच्छी होती है, 80-90% तो होती है, एटलीस्ट जो ऊपर की ब्रांचेस हैं 8-10 की तो हो ही जाती है. And this question has also been asked to us. Read somewhere that we need to do 3 internships before placement. हाँ ये मैंने भी सुना था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, बट लाइक मैंने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं देखा है, बट ऐसा कहते हैं लोग, तो सेफ साइड पे होने के लिए कर लो, आई वुड से. अरे ये नोटिस DTU स्पेसिफिक नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का जो भी बॉडी है, AICTE का कुछ सीन है ये, मतलब ऐसा मैंने भी ये फर्स्ट ईयर में ही सुना था जब तुम्हारी तरह आया था, तो ये लोग कहते हैं, तो मतलब कर लो, कोई नुकसान नहीं है. मतलब यू हैव 8 वेकेशंस ना, 3 तो भैया डिड यू डू 3 इंटर्नशिप्स? हां मेरी हो चुकी हैं. सर सीपी वर्सेस वेब में फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी अच्छी है? यार ये टेक वाले ना, मैं वही मैं कह रहा था, मैं करता नहीं हूँ ये, तो मेरा लाइन थोड़ा डिफरेंट है, तो ये अमन से पूछ लेना अलग से तुम. मैं भी 7:30 तक बैठ जाऊंगा. शुभांग फ्री है 5 मिनट्स. कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछो, जनरल नहीं स्पेसिफिक, रिलेटेड टू स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ लाइन, मतलब जो इंटरेस्ट. मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन है, ऑटोमोशन में प्लेसमेंट कैसी है? Automation. Mechanical type, similar to mechanical. There's no difference as far as the company is concerned. So both teams can sit for all the placements?
No, not all. मतलब जो मैकेनिकल को अलाउ होगा उतना ही होगा. तो most coding companies will not allow like these branches, but some might, like a few might. They are not tech के लिए internship opportunities कैसी हैं? कॉलेज में कम है, ऑफ कैंपस तो बतेरी हैं, बट लाइक मुश्किल फिर मेहनत भी लगती है उनको. आपकी मतलब ऑफ कैंपस के लिए थोड़ी गाइड कर दो. ऑफ कैंपस टाइम के साथ ही होगा. जब तुम्हारी प्रोफाइल बनेगी तो फिर मतलब यू कैन लेवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन एंड मतलब कॉन्टैक्ट्स, डीओ वगैरह में दोस्त बनाओ. जो मतलब जैसे जो तुम्हारे जो लोग बीकॉम और ये सब कर रहे हैं उसमें दोस्त बनाओ, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं. ऐसे लाइक नेटवर्किंग से ही बनता है वो. भैया सेमेस्टर अब्रॉड का क्या सीन है? किसका? सेमेस्टर अब्रॉड का. हाँ, ये जो मैं कह रहा था ना पहले कि अगर ज्यादा क्रेडिट्स आप कर लो एक सेमेस्टर में, 32 कर लो तो आपका एक सेमेस्टर फ्री हो जाता है. तो वो उसका वो है, वो मतलब वो कॉलेज का कोई डायरेक्ट टाई अप नहीं है. आईआईटीज वगैरह का जैसे होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, डीटीयू का किसी के साथ डायरेक्ट टाई अप नहीं है. तो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा ऑफ कैंपस. जैसे अगर आपको कोई एक्सेप्ट कर ले खुद से तो आप फिर पहले के अपने सेमेस्टर्स में अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करके जा सकते हो. एमबीए के लिए क्या और कब करना है? एक मिनट. हाँ बताओ. कम्युनिटी अपॉर्चुनिटी. टेक फील्ड में मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? टेक फील्ड में मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप. कोडिंग में अमन से पूछ लेना यार, वो एंटरप्रेन्योर बैठा है. That is okay. He's asking the code programming करते करते how can you scale up to a management position, like considering a coder also becomes a manager something. He's asking about that. I don't know. मतलब मैं भी तो थर्ड ईयर में हूँ. I don't know, maybe I guess like लोग कुछ साल जॉब करने के बाद एमबीए ही करते हैं eventually 2-3 साल बाद. I'm not sure how they scale up. मुझे भी वही पूछना था, एमबीए के लिए कब और क्या पढ़ना है? शुरू ये कब सवाल पढ़ना है? आप लाइक थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में या सेकंड ईयर के एंड में पूछना तो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा. अभी कुछ नहीं करना. ओके. भैया ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना. आपकी जेई रैंक पे डिपेंड करता है. कॉलेज में आप कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है जो. जेई रैंक पे डिपेंड करता है. अगर कोई बच्चा छोड़ के जाएगा, ये वैसा नहीं है कि आईआईटी जैसा नहीं, आपकी सीजीपीए आए तो अपग्रेड. सीजीपीए डिपेंडेंट नहीं है. अभी जो मिल गई है जस्ट फोकस ऑन दैट. अभी फर्स्ट ईयर है तो उस पे ठीक है. मैं वही बता रहा हूँ, सबका सेम है. लगा सकते हो पूरा जोर. अगर आ जाता है 10 सीजीपीए वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट स्कोर मोर देन 9. भैया अपने रेज्यूमे को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं उनके कॉलेज में? मतलब अरे ये सारी चीजें ना ये टाइम के साथ डेवलप होती हैं. लाइक आप एक दिन में ऐसे नहीं बना सकते. वही जो मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी तो कुछ होगा ही नहीं आपके पास. आप एक साल काम करोगे किसी सोसाइटी में तो यू विल सपोज लाइक विन सम थिंग्स, तो वो आप डाल पाओगे. यू विल डू सम इंटर्नशिप समवेयर, तो वो डाल पाओगे. ऐसे तो वो टाइम के साथ ही that you are talking about. Me question पे ये आता, what are these skills actually? They were these skills, they are job dependent यार. अगर कोडिंग जॉब है तो आपका डीएसएल को आपकी स्किल है, आपकी ये वेब डीएमएल. as according to MBA, as a where you are applying, जैसे एमबीए के लिए कोई स्किल नहीं है. एमबीए का लाइक सिस्टम इज सिमिलर टू जैसे जेई का सिस्टम है. आपको एंट्रेंस, यू हैव टू गिव अ एग्जाम कॉल्ड कैट. तो आपको पेपर देना है. मतलब उसमें और वो कोई कंपनी में प्लेन के तो नॉन टेक में यही सारी स्किल्स हैं. लाइक मतलब जनरल मैनेजमेंट एंड मतलब कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी. कुछ ये सब्जेक्ट की तरह भी ऑफर होते हैं थर्ड ईयर के बाद. एंड बाकी आप वही सोसाइटीज वगैरह से सीख जाओगे. लाइक जैसे कुछ भी मैनेज करोगे, एनजी फेस्ट या कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे. जैसे भैया मैं वो रेज्यूमे में थोड़ी लिख सकता हूँ कि मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ. मतलब ऐसे कोई नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? इफ यू हैव डन समथिंग जस्ट लाइक राइट इट ना. इफ यू हैव लाइक ब्रॉट इन अ स्पॉन्सर और डन सम कॉर्पोरेट वर्क, बिल्कुल लिख सकते हो. क्यों नहीं लिख सकते? खाली मत लिखना मैनेजमेंट का. अच्छा, गिव आल्सो सम प्रूविंग पॉइंट. दिस इज व्हाट शुभांग इज मीनिंग. राइट, गिव एविडेंस टू दैट ना. जो काम किया उससे उसको एक्सप्लेन करना. आपको ये बनाना है कि ऐसे कोई काम बता दो मतलब जो ऐड कर सके नॉन टेक के लिए. बोल तो रहा हूँ, सोसाइटी जो भी 2-3 ज्वाइन करोगे उनमें बस जेन्युइनली काम करो. हर सोसाइटी के 5-5 फेस्ट होते हैं और 50-100 इवेंट होते हैं. वो थोड़ा बहुत उस पर करते रहो तो वो उससे अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे. भैया प्रैक्टिकल्स में नंबर्स मिल जाते हैं, मतलब नंबर टीचर्स वगैरह दे देते हैं अच्छे? हाँ दे देते हैं. अरे टीचर सारे नंबर दे देते हैं. मतलब कोई यहाँ खड़ूस नहीं बैठा. वो नंबर देने के लिए ही बैठे हैं. तुम बस उनसे लड़ो मत. मतलब जस्ट बी जेन्युइन, वो नंबर दे देंगे. कोई नंबर काटने के लिए नहीं बैठा है. उनका मतलब अच्छे नंबर मिल जाते हैं. बी जेन्युइन, अपना काम सही से करोगे तो मिल जाएंगे. अननेसेसरली कोई नहीं काटता. ओके भाई. प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग पूछना था कि अगर कोई लैंग्वेज सीख ली है, जावास्क्रिप्ट अगर खत्म कर लिया मैंने और मैं आगे मूव ऑन करूं या बेसिक प्रोजेक्ट करता रहूं
ये यार ये अमन से पूछ लेना उसके बाद विद स्पेसिफिक डाउट्स। ठीक है, और किसी को कोई शुभांग से स्पेसिफिक कॉलेज रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर अगर मैं जैसे सर नॉन टेक में हूँ सर, और मैंने पर अपनी कोडिंग और अपने DSL को मैंने सही कर रखे हैं, ठीक ठाक कर रखे हैं, पर मुझे सर जैसे कि कुछ कंपनी अलाउ कर देती है नॉन टेक वालों को भी प्लेसमेंट के लिए, पर मुझे सर मतलब इन कैंपस नहीं मिली सर, ऑन कैंपस नहीं मिली, और मैं ऑफ कैंपस जाता हूँ किसी कंपनी में, तो सर मैं टेक कंपनी में ले सकता हूँ? ऑफ कैंपस तो कुछ भी ले सकते हो यार, अब उसका फिर कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है ना, कुछ भी करो, कौन रोक रहा है। सर वो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास डिग्री तो आपके पास नॉन टेक की है? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, नॉन टेक क्या मतलब नॉन कोडिंग ब्रांच कह रहे हो ना बेसिकली? हाँ जी। हाँ ये वही कंपनी डिपेंडेंट है, अगर किसी कंपनी की पॉलिसी होगी कि दे डोंट हायर मैकेनिकल इंजीनियर्स है, कुछ तो नहीं अलाउ करेंगे, जिसमें अलाउड होगा वो अलाउ कर देंगे, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सर ईपी को कितनी कोडिंग कंपनीज अलाउ करती हैं प्लेसमेंट में? मोस्ट कर देती हैं, 75% कर देती हैं, बिकॉज ईपी इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ डबल ई, वो सर्किट ब्रांच है, फिजिक्स कम है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है। सत्यम मैंने लिस्ट भेजी हुई है आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, देखना जो भी कंपनी इस बार इंटर्नशिप के लिए खुली थी हर ब्रांच के, वो हर ब्रांच के लिस्ट भेजी हुई है भैया, बट उसमें ज्यादा इंटर्नशिप्स थी नहीं मेरे ख्याल से, एक ही थी बस भैया। वो जब देना ग्रुप में इंटर्नशिप में थी, पूरे 64 कंपनीज आई हैं अभी इंटर्नशिप। सर एक बार आप और भेज दोगे उसको, अमन? हाँ चलो मैं भेज दूंगा। ठीक है देन, और कुछ तो आई गेस क्वेश्चन है नहीं, आई गेस एवरीथिंग। आप बताओ। एसिड्स कैसी सोसाइटी है? मतलब मुझे फाइनेंस एंड ट्रेडिंग सेक्टर में काफी इंटरेस्ट है, तो ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब कैसे? हाँ मतलब ठीक है, मतलब एवरी सोसाइटी इज गुड, मैं मतलब कोई भी किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, वो बाकी तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस। मैंने करी थी, फिर मैंने छोड़ दी थी बिकॉज आई वाज इन इनएक्टिव्स, मुझे लाइक पर्सनली इनएक्टिव्स बेटर लगी थी, बट और दोनों थोड़ी सिमिलर ही थी इन सम एस्पेक्ट, सो वही आपके ऊपर है, लाइक मतलब कर लो ज्वाइन, इफ यू लाइक इट तो स्टे विद इट, इफ यू डोंट यू कैन ऑलवेज लीव, तो ऐसे तो कुछ नहीं। भैया आप आगे मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हो? हाँ मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, मतलब चल ही रहा है, तो अभी देखेंगे। और भैया इलेक्टिव्स का कुछ तो नहीं, फर्स्ट कुछ सेमेस्टर में इलेक्टिव्स का कोई वैल्यू तो नहीं ज्यादा, मतलब कोई भी वैल्यू कुछ नहीं है, जस्ट एक जो भी जिसमें नंबर आपके ज्यादा आ जाए, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं ये लोग ढंग से पढ़ाएंगे? नहीं कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको पहले से स्कूल में आनी चाहिए, वही मैं कह रहा था, सिर्फ वही लेना जिनने स्कूल में पढ़ी हुई है, ये मत चेंज कर लो कि कॉलेज कुछ पढ़ा देगा, कॉलेज कुछ नहीं कराएगा। ठीक है आप स्टार्ट से। एक बार FEC सिलेक्ट कर लिया है भैया, एक बार FEC सिलेक्ट कर लिया है तो वो चेंज हो जाता है यार आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने अभी हो जाता मैंने देखा उसमें ड्रॉप करेगा। हाँ तो जो भी गाइडलाइंस कॉलेज की होंगी उस हिसाब से देख लेना, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है भैया टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसा है? हाँ इजी है, ठीक है, इजी है, कॉम स्किल्स टाइप ही है। अच्छा भैया व्हाट अबाउट वैल्यू ड्राइवन लीडरशिप? पता नहीं, नो आइडिया, मतलब लीडरशिप इज मैंने लिया नहीं, मैं इजी सब्जेक्ट्स है यार ये सारे, जिसमें आपको थ्योरी नहीं लिखने ना, उसको मान के चलो सॉफ्ट स्किल अच्छी है तो अच्छा है आपके लिए। सॉफ्ट स्किल इंप्रूव, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल वीक भी है ना, टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स एंड रियली गो फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट दोनों के लिए जाओ, स्कोर भी करना है, सॉफ्ट स्किल भी गेन करनी है, कुछ ना कुछ तो गेन करोगे, चाहे कैसी भी FEC हो। स्पोर्ट्स में भी वो दौड़ाते ही हैं, और वो भी इतना ज्यादा इजी नहीं होता, थोड़े बहुत थकोगे, तो एवरीथिंग इज द सेम somehow. ओके भैया एनालिस्ट और बिग डेटा के लिए कैसे पढ़ना? बताऊंगा बाद में। शुभांग MBA कहाँ से परस्यू करना चाहते हो? यार चल रहा है सब, तो मैं ऐसे कोई मतलब इतना डिसाइड करके नहीं बैठा हूँ, चल ही रहा है, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो सोचा तो होगा आपने? सोचा तो सब हैं, अभी मेरे भी 2 साल बचे हैं। चलो किस सेक्टर में करना है तो? अरे ये सब यार टाइम के साथ ही डेवलप होता है, मैं ऐसे आई गेस फाइनेंस, सप्लाई चेन है, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इनफ, जिसमें भी मतलब जो भी रास्ता बनेगा अपने आप, ऐसे यू कांट लाइक ऑलवेज, आपको हमेशा ऑप्शन नहीं मिलती है लाइफ में, ऐसे आप ब्रांच तुम लोग चूज करके थोड़ी आए हो, रैंक पे मिली है ना, तो वैसे ही होता है। अब बताओ कुछ फाइनल लेनी है भैया MBA के लिए कॉलेज की GPA भी मैटर करती है ना?
हाँ 8.5 प्लस चाहिए होती है, उसके ऊपर कोई नहीं पूछता। तो मार्क्स मिलते हैं उसके 8.5 प्लस के ऊपर आपको हाईएस्ट ग्रेड मिलता है। GPA 9 रखो आप लोग, कम मत रखो। उसके लिए वेबिनार करवा रहे हैं हम, नहीं तो फिर वो नो पॉइंट। GPA 9 आप रखना। एंड एनीथिंग एल्स किसी को कुछ पूछना है? फर्स्ट ईयर में मैक्सिमाइज कर लो यार जीपीए, बाद में ना बिकॉज जैसे आगे जाओगे कॉलेज में और बहुत चीजें आएंगी, जैसे इंटर्नशिप प्लेसमेंट, इन चीजों में ध्यान जाएगा तो पढ़ाई मतलब थोड़ी कम फोकस हो सकता है, तो अभी मैक्सिमाइज कर लो। अरे डीटीयू से किसी की ओवरसीज प्लेसमेंट लगी है, मतलब इतना काम का क्वेश्चन तो नहीं है बट वैसे ही। हाँ लगती हैं, एक अक्षदीप भैया थे, उनकी अमेज़न में लगी थी जर्मनी में लास्ट। आकाशदीप एक्चुअली वर्क विद मी, तो हाँ उनकी लगी है, नहीं लगती है एस बार भी, ऑफ कैंपस भी लगती है एंड ऑन कैंपस भी लगती है, और वो आई गेस फॉरेन कुछ यू वोंट नो देम क्योंकि ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम डीएमपी से। वो डीएमपी भी कुछ डिस्क्लोज नहीं करती बट लगती है, आप चिंता मत करो। स्पेशली क्रोम के ऊपर ओएससी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बेसिक क्राइटेरिया करो, सेकंड ईयर में क्लियर ऑन कैंपस उठाओ। मेन चीज तो ये है, अगर आपको कोडिंग प्लेसमेंट लेनी है तो इंटर्नशिप पे एम करो, प्लेसमेंट पे मत एम करो, दैट इज एंड ऑफ योर सेकंड ईयर। सो एम एट फुल getting a full skill stack is the right word with CGPA at the end of your second year. Don't wait for the last 4 साल में करूंगा मैं प्लेसमेंट, एक सेकंड ईयर से एम करो। एनीथिंग एल्स? Okay then, I guess चलो शुभम thanks. Thank you भैया। Thank you guys, thanks Aman. Thank you. Yeah. Any last thing, last note? Last note, like thanks Aman for giving me this platform. I hope like तुम लोगों को थोड़ा helpful लगा हो, मतलब कुछ चीजें अगर जो भी तुम्हें, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, it's not like मतलब ऐसे it's not a must do list, ऐसा नहीं है that you have to follow everything exactly, जो तुम्हें अपने लिए relevant लगे वो चीजें follow कर लो, जो ना लगे मत करना। Everyone has their own journey in college, so all of you will have like a different path through your 4 years. So just be honest to yourself and like work hard at whatever you do. About it. Okay. Thanks guys. Bye. Thank you भैया। Thank you. आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो भैया, कैन यू शेयर योर इंस्टाग्राम आईडी? मेरी तो बड़ी हो गई, अमन जा करके। कैन यू भैया फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप नहीं करनी तो सेकंड के स्टार्टिंग से करनी है? मैं बताता हूँ यार, देखो इंटर्नशिप लो बेशक लो, पर अपनी कोडिंग साथ साथ में मैनेज करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंटर्नशिप कर सकते हो, स्टार्टअप मैनेज कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं, डेडिकेटेड रहो, ठीक है। भैया कोडिंग में अगर बता दूं तो कहाँ से सीखूं? कोडिंग यार अभी हम क्लासेस करवाने का सोच रहे हैं आप लोगों को, rather than डायरेक्ट हैकर ऐप पे कराए ना। ध्रुव भी एक बार वापस पूरा कोडिंग रिवाइज करेगा, तो वो मोस्ट प्रोबब्ली 1 हफ्ते के बाद करेगा। अभी थोड़ा बहुत कॉलेज एंजॉय करो एंड हम कोडिंग के पूरा प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली कोई वो उसका कॉस्ट नहीं होगा, सारी चीजें फ्री नहीं है, बट जो बच्चे डेडिकेटेड है उनके लिए काफी अच्छा होगा। पर दिन का टारगेट रखेंगे हम, और ऑलमोस्ट दो क्वेश्चंस बस, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चंस का टारगेट होगा, बट उसमें आप सीख लोगे एंड 6 मंथ्स में आप पूरा ये सेमेस्टर एंड होते आपको पूरी कोडिंग आ जाएगी। मोस्ट प्रोबब्ली ये पूरा साल एंड होते आपको उतनी कोडिंग आ जाएगी जितनी इंटर्नशिप के लिए चाहिए होगी। भैया अगर बिल्कुल बिगिनर हूं तो ये बेनिफिशियल होगा अटेंड करना? क्या जो आप बोल रहे हो कि वो सिखाएंगे हैकर ऐप? नहीं, हमें हैकर ऐप पे नहीं, प्लेटफॉर्म सब बताएगा, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखेगा। जैसे पर वीक का आपको टारगेट दे दिया जाएगा अराउंड 14 क्वेश्चंस का, जिसको आप बांट सकते हो दो दिनों में, पर डे 2 क्वेश्चन, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करेंगे, संडे या सैटरडे 1 घंटे का सेशन लेंगे, उसमें टॉप क्वेश्चंस थे 14 में से, जो टॉप डाउट थे वो क्लियर कर देगा ध्रुव आपके। आप बेशक सीखने कर लो, C++ कर लो, कॉन्सेप्ट ध्रुव क्लियर कर देगा मैथमेटिकली 1 वीक में 1 घंटे। कब रखा होगा ओरिएंटेशन मोस्ट प्रोबब्ली 1-2 वीक के बाद। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करो, हम भी नहीं चाहते एग्जैक्टली कोडिंग ना हो, अभी लेट अस सी करो। शुभम ने बोला उसने लेट अस सी की, मैं भी बोल रहा हूं लेट अस सी करो, तो कमेंट्स सब यही बोल रहे हैं जिनके हाई सीजीपीए, सबसे पहले लेट अस सी करो, उसकी मैथ्स को समझो, उसमें मैथ्स थोड़ी पड़ी हुई है, कैसे उन्होंने कोडिंग में मैथमेटिक्स लगाई, और अपना जनरल मैथ्स को फॉलो करो। ये जो सीक्वेंस सीरीज मैट्रिसेस पढ़ोगे काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट लीव दैट। भैया सीपी और डेव वेब में बता दो कौन सा से अभी करना चाहिए?
सीपी अरे अभी अभी देखो अभी करना है तो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली जो मेन चीजें हैं आपकी वेब ना आपकी सीपी काम आने वाली है बहुत ज्यादा इंटर्नशिप में, ना आपकी वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा काम करने वाली है, काम आने वाली है। मेन फ्रेंच हाँ वो तो ले लेना। मेन आपका जो काम आने वाला है वो है डीएस आर्गो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले वो कर लो। मैं वही बोल रहा हूँ सीपी अगर उसको पता होगा तो अच्छा है। जिनको बहुत ज्यादा सीपी आती है ना, कोई ऐसे बच्चे भी जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी सीजी पे हाथ में रखो, अपने डीएसआर को करो एंड एक बार वो आ जाती फिर सीपी करना आराम से। भैया आपने ऑफ कैंपस आपने गूगल में ट्राई किया था? हाँ हाँ हो गया था यार। मैं एक्चुअली अगर आप इन कैंपस बोल रहा हूँ, ऑन कैंपस इंटर्नशिप ले लेते हो ना तो ऑफ कैंपस नहीं अप्लाई कर सकते। तो बस इंटर्नशिप इंटरव्यू में जैसे अभी मेरे दोस्त का भी हुआ है, साथ ही साथ वो मेरी प्रिपरेशन कर रहा था। इनफैक्ट हमारा टेस्ट भी साथ ही साथ था। तो वही है, 2 टेस्ट होते हैं, एक पहला होता है एक दूसरा होता है ऑफ कैंपस का स्पेसिफिकली, ठीक है। आपकी रिज्यूमे अच्छी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद बस 2 इंटरव्यूज होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं अगस्त में। बट इनका एक ही दिक्कत है, इनका रिजल्ट डेट आता है। जैसे मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, उसका हो तो गया। जैसे क्या होता है ऑफ कैंपस में, ये भी थोड़ा बहुत काम है। जैसे हमारा हुआ 2 राउंड हो गए कोडिंग के, ठीक है, हो गया सिलेक्शन। उसके बाद एक लेटर आता है स्पेसिफिकली एनडीए करके। एनडीए में ये लिखा होता है अगर आपकी ऑन कैंपस इंटर्नशिप नहीं लगी है पहले, ठीक है, ऑन कैंपस इंटर्नशिप और काफी सारी चीजें होती है। डीटीयू का भी आता है सिमिलरली, एक फॉर्म टाइप सा आता है, फॉर्म नहीं एक मेल टाइप सा आता है कि आप तभी ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना जब आपने किसी ऑफ कैंपस के एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो ये दोनों तरफ से आता है, उनका भी आता है डीटीयू का भी आता है। अब अगर कुछ भी करना पड़ता है ना, इसमें थोड़ी रिपरकशंस है, जैसे आप बैन भी हो सकते हो प्लेसमेंट सेल से। तो काफी सारी चीजें हैं, बट एम करना ऑन कैंपस निकाल लो, फिर कोशिश करना ऑफ कैंपस की। अगर ऑन कैंपस निकल जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो ऑफ कैंपस में चले जाना। अपॉर्चुनिटी दोनों तरीके से सेम है, बट चैलेंजेस ऑफ कैंपस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस में आपके साथ आईआईटी दिल्ली के भी बच्चे हैं, शायद आईआईटी बॉम्बे के भी हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है आईआईटी बॉम्बे में हर किसी प्लेसमेंट लग रही है, राइट। तो ऑफ कैंपस ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और ज्यादा चैलेंजेस है, ज्यादा कंपटीशन है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में ज्यादा चैलेंजेस है, तो कोशिश करना ऑन कैंपस निकालो। पीआई सारे ब्रांच से निकल सकते हैं, मैंने अभी स्टार्ट भेजे हैं चैट बॉक्स में, एक बार देख लो। हर ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ कंपनीज खुली है। मैटर ये करता है कि आपके जो सीनियर्स थे इस ब्रांच से, उनकी ना तो इतनी सीजी पे बहुत हाई थी। क्यों नहीं हाई थी? क्योंकि आपके जो कोर है ना, देखो फर्स्ट ईयर में सीजी पे हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफी बच्चे इसको मिस कर देते हैं। और ये फर्स्ट ईयर सबके लिए सेम है। जो सेकंड ईयर है उसमें आपको कोडिंग भी करनी है और अपने कोर सब्जेक्ट मैनेज भी करनी है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो ब्रांचेस है उसमें कुछ कोर रिसर्चर्स होंगे, प्रॉपर रिसर्चर्स होंगे जिनको रिसर्च करनी है इस फील्ड में, जिनको अपने कोर में जाना है। और दूसरी तरफ आप हो गया, आपको जाना है टेक साइड में, जो मान लो ईपी में हो आप, तो ईपी में कोई होगा जिसको फिजिक्स परस्यू करनी है, आप हो गया आपको कोडिंग परस्यू करनी है। तो ऑब्वियसली जिसको फिजिक्स परस्यू करनी है वो बहुत जान लगा देगा जो डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं। शायद से आप उतनी जान न लगाओ उन डीप कॉन्सेप्ट्स को सीखने में, एंड ऑब्वियसली ये चीज मार्क्स में इफेक्ट करेगी सेकंड ईयर में, उसके ज्यादा आएंगे। बट यहाँ पे एक चीज समझो, ये रिलेटिव है। तो अगर वो 10 लाता है जो टॉप रिसर्चर के लिए परस्यू कर रहा है, तो आप एटलीस्ट 9 ला सकते हो। और अगर आपकी 4 सेमेस्टर में 9 आ गई तो आपकी एवरेज सीजीपीए क्या आएगी? 9। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में 9 से ज्यादा एम करो, ताकि एंड में जाके आपकी एटलीस्ट 8.5 9 के बीच में आ गई। और 8.5 9 में 8.85 में भी वो आपके जो बेस्ट ई ब्रांच से प्लेसमेंट लगी है, वो भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं तुषार, उसके आरबीएस में लगी है एज एन एनालिस्ट, ठीक है। वो भी मतलब एमएल भैया ये फिजिक्स और बीएमई केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े? बुक में बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है यार। बुक से ही पढ़ी थी मैंने, मैं सच बता रहा हूँ। पढ़ो, थोड़ा टाइम लो, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बिल्ड होता है। अभी नए हो, ठीक, ग्रुप में पढ़ो, किसी को बोल दो हाँ ये तू चैप्टर कर ले, तुझे समझ में आ गया, मुझे बाद में समझा दियो। मैं ये वाले करता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा, बाद में समझा दूंगा, बट करो, ठीक है। और क्लासेस में भी पूछ सकते हो, शर्मा मत पूछने से। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा है तो उसको यूटिलाइज करो। सुबह में भी एक चीज है, अगर अच्छा है तो पूछो, नहीं अच्छा है तो ठीक है, मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक से पढ़ना पड़ेगा। भैया बुक की जगह भैया एफईसी एक्सप्लेन कर दो आप थोड़ा। एफईसी एक्सप्लेन क्या करना है? देखो इजी वाले, क्योंकि स्पोर्ट्स में भैया कह रहे थे कि स्पोर्ट्स में स्कोर करना इजी नहीं होता। स्पोर्ट्स में हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप एथलीट हो तब ठीक है, नहीं तो ओ लाना है तो कोई और ले सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बात सारी तब आ जाती है ना जब ओ लाना है। जब ए लाना है स्पोर्ट्स में ए आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बात ओ आने की आ जाती है ना, तो उसके लिए जाओ,
जिसमें ओ आ सकता है आपका। तो आप कोई सजेस्ट कर सकते हो? यार वैल्यू ड्रिवन लीडरशिप बोल दिया मैंने। लीडरशिप मैं अपने हिसाब से लेता तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे, उसमें भी वही आया था मेरा। तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे है? यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक स्पीकिंग यार इजी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इजी है दोनों सब्जेक्ट, बट डिपेंड इसमें करता है तुम्हें इंटरेस्ट है नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी क्यों बोल रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट था नहीं, तो उसके जो नोट्स है ना बहुत बड़े बहुत लंबे, बट वो मैंने कर लिए क्योंकि उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट था। हो जाए जेन्युइन इंटरेस्ट को ले जाओगे, वो नहीं है तो फिर देखो किसमें है। अभी देख लो उस लिस्ट में किसमें इंटरेस्ट है जेन्युइनली, तो आप ठीक है रैंक लिस्ट बना दो, हर एफईसी का नाम देखो, ऑर्डिनेंस में उनका सिलेबस है, ऑर्डिनेंस का भी लिंक भेजा होगा, ऑर्डिनेंस में उनका सिलेबस देखो, जिसका पसंद आया उसकी रैंक लिस्ट बना देना। अगर ये मिला तो ये लूंगा, नहीं मिला तो ये लूंगा, नहीं मिला तो ये लूंगा। तो भैया जीपीए पे इफेक्ट करते हैं इफेक्ट? हाँ बता तो रहा हूँ, जीपीए पे इफेक्ट करेंगे, सारे एफईसी करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में आ जाते हैं भैया? क्या करवाते हैं? क्या लॉजिकल रीजनिंग में क्या करवाते हैं? यार ऑर्डिनेंस में देख लेना, लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक मैथ्स होती है और थोड़ी बहुत लॉजिकल वो होती है। मैथ्स में सब्जेक्ट होगा ना लॉजिकल रीजनिंग क्लास 12 में, एनीवे याद नहीं। हाँ बस वही है, उसका एक्सपैंड थोड़ा एक्सपांड होगा, वो थोड़ा ज़्यादा और एक्सपांड होगा थोड़ा ज़्यादा। और मैंने सुना है कि जो ईवीएस है उसमें ऑफलाइन में मार्क्स नहीं देते टीचर्स। नहीं देते हैं यार, किसने बोल दिया? नहीं है मतलब हाइप बना दी थी कुछ बच्चों ने कि नहीं देते, तो ईवीएस की सीट सबसे पहले खाली हो गई। इसमें मुश्किल है क्यों? क्योंकि बाकी एफईसी की तरह नहीं, बाकी एफईसी में कितने, जैसे अपना फाइनेंशियल था 60 बच्चे थे, ईवीएस को ना एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करो, उसमें कितने 4 बैच होते हैं शायद से ईवीएस के, और हाँ 70 भी नहीं, आई गेस 4 बैच में ऑलमोस्ट, हाँ इतने ही है, 17 to 4 कर लो कितने होते हैं 280, और आई गेस और ज्यादा होते हैं, हाँ अराउंड 300-400 बच्चे। तो ईवीएस को ना एज ए सब्जेक्ट लो। हेलो भैया, इसका आंसर मैं जानना चाहूंगा भैया। मैं सेकंड फर्स्ट ईयर पर ईवीएस थी, तो भैया स्कोरिंग मेरा अच्छा हुआ था ऑनलाइन में, मेरा ए ग्रेड आया था अच्छा। आ जाएगी, चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूं आ जाएगी भैया, हो जाती है ऑनलाइन में, सही नंबर आ जाते हैं ईवीएस में। फिजिक्स का जो लैब वाला चक्कर है उसका कुछ बता दोगे? उसमें सिर्फ क्या कहते हैं फाइल के मार्क्स चढ़ते हैं, किसी और के भी चढ़ते हैं? आज मेरी थोड़ी बहस हो गई। मार्क्स देखो फाइल के चढ़ता है, अगर तुमने फाइल में ग्राफ अच्छे से बनाए हुए हैं, डायग्राम्स अच्छे से बनाए हुए हैं, और ये देखो वो फाइल का लिखित में कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि खाली मैं टीचर को ये बोलूंगा ना सर मैंने लिख तो लिया, पूरा लिख लिया ऑब्जर्वेशन सब कुछ, अब मुझे मार्क्स दे दो, वो देखेगा ही नहीं, उसको लिखने से मतलब नहीं है, उसको ऑब्जर्वेशन से मतलब है। तो चाहे ये देख लेना तुमने लिखा गंदी हैंडराइटिंग हो, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए सबसे पहले तो, कि तुमने कहाँ से लाया है, ठीक है? ये अच्छा, वो करवा के देख सकता है वहीं पे? हाँ करवा के नहीं, ऑनलाइन है, करवा के तो नहीं, बट कैसे पूछ सकता है कि कैसे किया? बिल्कुल पूछता है यार, वाइवा होता है डेली, हमारा डेली होता था केमिस्ट्री में। हेलो फिजिक्स के लैब वाले थोड़ा अजीब से है भैया। बताओ। तो मैंने ना किसी सीनियर से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि फ्रेंच ले लो और इजी है, उनके पास भी थी, और मैंने पूछा कि कोई प्रायर नॉलेज चाहिए क्या, तो वो कह रहे थे नहीं मेरे पास भी नहीं थी कोई प्रायर नॉलेज, बट उसका वो आ गया था, और बोल रहे थे कि सबके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो मैंने वो ले ली। अब क्या कहते हैं, शुभम भैया बोल रहे थे कि अगर प्रायर नॉलेज है तभी लो वरना मत लो। हाँ यार लैंग्वेज में मैं भी यही कहूंगा, मत लो ऐसे, अगर कोई अभी कोई और अच्छा मिलता तो ले लो, नहीं तो उसके साथ जिसके साथ आप कर सकता है अभी भाई। कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती है वो। हाँ बिल्कुल, अभी देख लो ना किसकी जितने भी बच्चे उनकी एक रैंक लिस्ट बना दो भाई। तो इजी है शायद। हाँ बताओ। हेलो भैया, जो ये कोडिंग होती है भैया, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आती है इसमें? बिल्कुल आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आता है, प्रोबेबिलिटी का इतना हम यूज नहीं करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी एमएल के लिए इंपॉर्टेंट है, एआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कर लो तो कर लेना अच्छे से। भैया ज्यादा आती है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये मेरी वीक है वो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आती है, देखो रिकर्जन में मैं यूज करता हूँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो मैं छोड़ने भी नहीं बोलूंगा तुम्हें, प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, बट एमएल एआई में काफी इंपॉर्टेंट है। भैया किस सेमेस्टर में 32 क्रेडिट्स हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? एक और चीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी यूज आती है, तो उसको छोड़ना मत, प्रोबेबिलिटी को बेशक छोड़ देना। अभी तक मैंने डीएसआर में प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं देखा था। हाँ बताओ। हाँ भैया 32 क्रेडिट किस में कंप्लीट कर सकते हैं हम जल्दी, कौन सी ईयर में? नहीं ऐसा मत करो, अभी जितने सब्जेक्ट्स हैं ना 5-6 होंगे तुम्हारे, 6 सब्जेक्ट्स ही करो। 6 ही, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते? नहीं कर सकते हो, बता तो रहा था, वही तो बता रहा था शुभम। अभी कितने क्रेडिट्स हुए तुम्हारे? 32
20 क्रेडिट्स हैं अभी मेरे, इससे ज्यादा चूज ही नहीं हो रहे हैं मतलब। एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना अलग से अगर एक और मैंने बोला ना एप्लीकेशन देनी पड़ती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कर सकते हो, बट डीटीयू में ये प्रथा है नहीं। आईआईटीज मणिपाल में होता है, मणिपाल में बस जाके देखो वहाँ पे बच्चे ना 2 साल, जैसे अल्टरनेट है उसने में तो यही किया, एक बार जाके पढ़ना, मणिपाल में था वो, ठीक है, उसने वही किया 2 सेमेस्टर में थोड़े ज्यादा क्रेडिट सीखो फिर फॉरेन अप्लाई करो, बट बच्चे में सीजीपीए चाहिए, तो जो चीजें बताई वो तो यूनिवर्सल है। एक बार देख लेना सर्कुलर